Nagesh, good afternoon. Sir, good afternoon, sir. Sir, okay, sir will introduce you. Voice clear unda? Yes, sir, it is clear. After introduction by AP, you can start this session, sir. Okay. Another 5 minutes is there. No problem. Just I was testing it. Okay, sir. Thank you. Sir, both PPTs to be shared today? Yeah. Okay, sir. Yes. I'll give the topic by evening. I'll share in the Zoom chat. Yeah, sure.
Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Unmute. Please unmute. Okay, Right. is it okay? Yes, sir, it is okay, sir. Now it is audible. Good afternoon to all participants. On behalf of the Academy, I welcome you to day 21 of the Appendix 3 session. The topic for the day is estimates and its scrutiny. To deal with the topic, we are privileged to have Sri Mohammad Afzaluddin Garu, who will take you forward to the session. Good afternoon, sir, and welcome to the session. Thank you. So, good afternoon all. Welcome to the second session for the expenditure. In the previous class, we couldn't get much time. We were discussing about the abstract estimates. We were discussing about the proposals which are being processed for administrative approval through IRPSM. IRPSM, how the proposals are uploaded, how they are scrutinized, and then how they are processed for approval, and after approval, what happens. All these things we have, most of them we have discussed. Other things are available in the PPT. Nagesh will be uploading today. So there, detailed procedure is there. That may not be required for you to write in the examination, but you must know what at division level what happens, at headquarters level what happens, at boards level what happens in the IRPSM for the approval of the abstract estimates. So that is required to be known. If you see the PPTs, then all the details are available there. So now, some of the topics we couldn't discuss on that day. We limit that session only up to the IRPSM. Now we will go further. We will discuss all the estimates. What is the estimate? What is the necessity of preparing an estimate? And what are the various types of estimates, abstract estimate, detailed estimates, and various types of estimates? And what is the scrutiny? What is the scrutiny of finance in each of those estimates? We will discuss. As I was telling you last week, I'll be taking a few more classes on the expenditure. So I will try to cover right from the beginning till the ending. So the entire topics we would like to cover, then which will be useful to you for your examination. I made the PPTs in such a way that you can even take the inputs from these PPTs and write the answers. I was requesting you to prepare the answers for the questions, and I was also telling you I'll be giving the question bank on this expenditure. The next class I will be sharing the question bank also. And meanwhile, I'll also be telling you what are the questions that can be asked in these topics. So, and I guess next time, next session, I'll be giving the question bank as far as the expenditure is concerned. And okay, sir. Okay. I'll share in the group. Yes. And I was also telling that the pattern may be a mixed pattern, or may not be the same pattern, may be continued depending, because the board is yet to take a decision on that. But don't bother about that pattern. Don't prepare only the objective type questions. You prepare the subjective type questions and write answers in a book. That will be easy, various aspects that will be easy for you to attempt either the objective type or the subjective type questions. So let us start the topic today. I would like to ask how many of you have by-hearted the various demands for grants and the primary units and the plan heads, at least plan heads and the demands for these two. At least 50 people might have, 50 candidates might have learned about the various demands for grants. Can I? Sir, should I unmute all? Yes, so once you admit. Yeah, I'll unmute. So participants,
Yeah, participants, please respond. How many of you have learned the demands for grants and the planets? Oh, yes, sir. I had demand. I have Very by good, head, very sir. good. Total demand. वेरी गुड वेरी गुड. क्यों इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा था क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने में या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करने में या बिट क्वेश्चन आंसर करने में आपको वो है यूजफुल फॉर यू. What are the various demands or grants? That is a long question. What is a demand? Yes, yes. What is demand number 9? It's a short question. And उसमें उसके बाद उसका bits भी आएगा. So you will have at least 10. हाँ, वो तो रहता है, सर. Yes. So now you can mute. Okay, sir. I'll unmute. I'll mute all. So good thing all of you must have learned some of the demands for grants and also the planets. So now we will go ahead. Last week we have seen a little bit of budgeting, how budgeting is done for revenue, how budgeting is done for capital, how budgeting is done through IRPSM, and what are the, in that we have not discussed probably the limitations in the IRPSM. There are some shortcomings in the IRPSM that we will see. I'll cover those shortcomings in the IRPSM. Is a software, you know, is being used for processing the administrative approval of the various abstract estimates, including the PW, the costing more than 2.5 crores, costing less than 2.5 crores, umbrella works, lump sum works, OT works. All these are being processed on the IRPSM. So IRPSM should actually, the provisions of IRPSM should match with the provisions of the SOP, but it is not matching. Actually, as per the SOP, the ceiling is different. As per the IRPSM, the ceiling is different. So it is not matching. The IRPSM is not taking into account the throw forward. It is making only grant into 3 times. It is allowing the works to be approved. So that is creating a problem. So as per the SOP, grant into NAM minus throw forward, but that throw forward is not being taken for the IRPSM. That is the biggest drawback. That is the biggest drawback available in the IRPSM. Further, there are no throw forward details available in the IRPSM, and the data can be altered. Data can be managed without the finance weighting. So that should be avoided. That should be avoided, and we should put a condition that the data available on the IRPSM should not be altered without the consent, without the concurrence or weighting of the finance. So that if that is made, and if there is a provision made in the IRPSM that there should be some checklist. There should be some checklist wherein, one second. There should be a checklist wherein the IRPSM should ask whether you have uploaded this, you have attached this. So उस checklist होना चाहिए, and उसमें cost details होना चाहिए, उसमें rough sketches होना चाहिए, उसमें certificates होना चाहिए. So all these things have to be made compulsorily in the IRPSM so that the true purpose for which IRPSM has been created is met. So that is नहीं है. So ये इसके drawbacks हैं, ये इसके drawbacks हैं, IRPSM के drawbacks थोड़े हैं. लेकिन अच्छी चीज क्या है? So we are able to get the works approved very fast without going into the manual process. तो ये एक अच्छी चीज है. लेकिन इसमें थोड़े limitations हैं. वो limitations को अगर सही करें तो that will be very fantastic. ठीक है. तो हम लोग why I discussed that is because last time we were not having time to discuss. So So the IRPSM was used for the purpose of getting the abstract estimate approved at various levels. Okay. So now today we will see what is an estimate. Why do we require to prepare an estimate? हमें estimate क्यों बनाना है? किन चीजों में बनाना है? कहाँ पर बनाना है? And so those things we will discuss today. ठीक है.
So when to prepare a formal estimate? There may be a question: what is an estimate? When to prepare in Indian Railways? What are the circumstances where we must prepare an estimate, and whether there is any exception? So that this slides talk about that, when to prepare a formal estimate. So the ordinary rule is that no work shall be commenced. The ordinary rule is that no work shall be commenced unless an estimate is prepared and approved and sanctioned by competent authority. उसके बाद ही वर्क स्टार्ट होगा. लेकिन हाल में एक प्रोविजन दिया गया है कि भाई 5 लाख तक, अगर 5 लाख अगर रहे तो आपको डिटेल एस्टिमेट बनाने की जरूरत नहीं है. 5 लाख अगर, बिकॉज आप जोनल वर्क्स करते हैं, जोनल वर्क्स में रेवेन्यू चार्जेबल टू रेवेन्यू, उसमें 5 लाख तक का उसका जो पावर दिया गया है टू इश्यू ए वर्क ऑर्डर विदाउट एनी एस्टिमेट. तो 5 लाख तक का आपको छूट है, एस्टिमेट बनाने की जरूरत नहीं है, वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू. चाहे रेवेन्यू में या कैपिटल में अप टू 5 लाख तक का आपको एस्टिमेट बनाने की जरूरत नहीं है. दैट इज वन एक्सेप्शन. एंड द सेकंड एक्सेप्शन इज, अगर वर्क अर्जेंट है, अगर वर्क अर्जेंट है, हमें कुछ ट्रैक को रिस्टोर करना है, तो जब भी आपको एस्टिमेट बनाने की जरूरत नहीं है. लेकिन एक आपको बनाना है, एक अर्जेंसी सर्टिफिकेट बनाना है. अगर सपोज इफ यू वांट टू start your work immediately to restore the track, to commence the to restore the communication, to restore the transportation. So उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक अर्जेंसी सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क क्या है. सो यदि बाढ़ आ गई, ट्रैक ट्रैक बाढ़ में बह गया और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो डिरेलमेंट हो गया, उसको हम ट्रैक को, उसको ब्रिज गिर गई. सो these things we have to attend urgently because we have to restore our traffic. तो that circumstances we need not prepare an estimate, but एक अर्जेंसी सर्टिफिकेट बनाएंगे और वो सैंक्शन, जीएम का सैंक्शन लेंगे और उसके बाद में हम उसको आगे बढ़ेंगे. वहां पर डिटेल एस्टिमेट की जरूरत नहीं है. So, 2 चीजों में डिटेल एस्टिमेट की जरूरत नहीं है. एक तो आपको 5 लाख तक का डिटेल एस्टिमेट की जरूरत नहीं है, और अर्जेंसी सर्टिफिकेट में जो अगर काम करना है तो वहां पर भी डिटेल एस्टिमेट की जरूरत नहीं है. तो ये अर्जेंसी सर्टिफिकेट इज आल्सो ये फॉर्म ऑफ ऑफसेट एस्टिमेट, ये ऑफसेट एस्टिमेट मान के चलते हैं इसको. इसके बाद में डिटेल एस्टिमेट कब बनेगा? बाद में बनेगा, जब पूरा काम हो जाएगा, जब बेस्ड ऑन दी जो भी इसमें एक्टिविटीज हुए हैं, जो भी इसमें कार्रवाई हुई है, जो भी इसमें एग्जीक्यूशन हुआ है, उस बेसिस पे जो डिटेल एस्टिमेट बनेगा. सो दीज आर द 2 exceptions where we need not prepare the detailed estimates. ठीक है. तो why to prepare, कब प्रिपेयर करना है तो हम देख लिए. why to prepare an estimate? एस्टिमेट तो पता है आपको, प्राक्कलन, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राक्कलन. प्राक्कलन क्या है? इट्स ए डिटेल्स ऑफ द डिटेल्स नहीं, इट्स एन असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द वेरियस वर्क्स इन्वॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऑफ ए वर्क, उसको बोलते हैं एस्टिमेट. तो व्हाई टू प्रिपेयर हमने देखा है, व्हेन टू प्रिपेयर. अभी व्हाई टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अर्जेंट वर्क्स. अर्जेंट वर्क्स में हम देखा है कि जहां पर आपको अर्जेंसी सर्टिफिकेट से काम चलेगा. ऑल द एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स शैल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन देम बिफोर द एनी एक्सपेंडिचर लायबिलिटी इज इंकर्ड इनटू. मतलब अगर अर्जेंट है और 5 लाख का काम है, इनको छोड़ के अगर जो भी कार्यवाही होती है, जो भी कार्यक्रम हम टेकअप करना चाहते हैं, उनको सैंक्शन करे बिना हमको कौन सा भी वर्क आगे बढ़ नहीं सकते. सैंक्शन बिफोर एनी एक्सपेंडिचर, कुछ एक्सपेंडिचर हम खर्च नहीं कर सकते हैं वो वर्क पे अनलेस एन एस्टिमेट, अनलेस एक प्राक्कलन स्वीकृत नहीं हो जाता. ठीक है. सो और भी क्या है, हमें एस्टिमेट बनाने की जरूरत है टू एग्जामिन वेदर द एक्सपेंडिचर प्रपोज इज फाइनेंशियली और अदरवाइज जस्टिफाइड. हमें मतलब अब ये काम करने के लिए हमने देखा था 10% ROR बनाना है, रेट ऑफ रिटर्न बनाना है. मतलब एक हम 100 रुपये खर्च करें तो 10 रुपये हमें वापस चाहिए, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू चाहिए और हमारे इसमें सेविंग चाहिए. अगर ऐसा होगा तभी वो वर्क फाइनेंशियली जस्टिफाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो इसको देखने के लिए भी हमें एस्टिमेट बनाना है. और टू असेस द रीजनेबलनेस ऑफ द कास्ट. तो कास्ट जो भी हमने बोले कि इसका काम कितना होगा, कोई बोलेगा सर ये इसका 10 करोड़ होगा. 10 करोड़ किस तरह होगा, यानी आपने उसको क्या बेसिस लिया है आपने. तो रीजनेबलनेस ऑफ द कास्ट,
एंड टू नो वेदर एक्सपेंडिचर कैन बी मेट। आपका ग्रांट में जो भी एक्सपेंडिचर है, आपका जो ग्रांट एलोकेटेड है 10 करोड़, उसमें से आप इस काम को कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, दैट आल्सो वी हैव टू सी बाय प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट। और हमने जो एस्टिमेट हम इसलिए बनाते हैं कि भाई हमारा जो सोर्स ऑफ फंडिंग है, तो टू डिसाइड करना है वेदर ये चार्जेबल टू कैपिटल होगा, वेदर इट इज चार्जेबल टू डीएफ होगा, वेदर इट इज चार्जेबल टू डीआरएफ होगा, इसको भी डिसाइड करने के लिए हमें एस्टिमेट बनाने की जरूरत है। एंड फॉर द अबव स्क्रूटिनी, ये स्क्रूटिनी करने के लिए और द सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमें एस्टिमेट बनाते हैं। सो दीज आर द व्हाई टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट एंड व्हेन टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, what are the circumstances under which an estimate is required to be prepared? So yeah, why estimate is required to be prepared? What is an estimate? Why estimate is required to be prepared? So ये questions आएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, व्हाट एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। एंड जनरली आज का जो टॉपिक है, तो उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स ऑन इंडियन रेलवे सिस्टम एंड व्हाट इज द चेक दैट फाइनेंस डज ऑन ईच वन ऑफ देम। ये जो जितने भी एस्टिमेट्स हैं, इस पे इसका अर्थ क्या है, एस्टिमेट का अर्थ क्या है, एक्सप्लेन करेंगे आप। और उस पे जो चेक्स हैं, वो चेक्स को भी हम बताएंगे। जो फाइनेंस वाले जो चेक करते हैं, वो चेक्स भी हम लिस्ट आउट करेंगे। दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास, ठीक है। So what are the various types of estimates? The following are the various types of estimate: abstract estimate, detailed estimate, supplementary, revised, project, abstract estimate, construction estimate, completion। और इसके बारे में हम एक चार सेंटेंस लिखेंगे उसको। तो abstract estimates are prepared for the purpose of getting the administrative approval। ये पंच वर्ड है, administrative approval। ये rough estimate है, rough, it is prepared based on the rough sketches। रफ स्केचेस एंड ड्राइंग्स, इसमें डिटेल ड्राइंग्स नहीं बनते हैं, इसमें खाली रफ ड्राइंग्स बनते हैं, रफ स्केचेस बनते हैं। और बड़े बड़े एस्टिमेट हैं तो जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है वो उस पर सर्टिफाई करेगा कि जो क्वांटिटीज और जो रेट्स हमने अडॉप्ट किए हैं इस सब्सट्रैक्ट एस्टिमेट्स में, वो रीजनेबल है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ये अबनॉर्मल वेरिएशन इसमें नहीं हो सकता है, अवॉइड हो सकता है। ये सर्टिफिकेट लिखेंगे उसमें। तो ये abstract estimates are the rough estimates prepared for the purpose of administrative approval of the competent authority, ठीक है। Then what is detailed estimate? जब abstract estimate अप्रूव हो जाता है, abstract estimates कई होते हैं, 100 में होते हैं, 200 300 होते हैं abstract estimates, rough estimates हैं। हर एक मांगता है भाई हमें ये वर्क चाहिए, हमें एक वर्क चाहिए। सो हर एक रेलवे से बहुत सारे वर्क जाते हैं बोर्ड को, हर एक डिवीजन से बहुत सारे वर्क आते हैं हेडक्वार्टर्स को। तो हम सभी वर्क्स तो अप्रूव नहीं कर सकते ना, तो इसलिए पहले क्या करते हैं, इसलिए हम abstract estimate बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बनाते हैं, 100 एस्टिमेट अगर बन गए तो उसमें 20 अप्रूव हो जाते हैं, तो बाकी का ड्रॉप हो जाते हैं। 100 में से 20 अप्रूव हो गया, 80 ड्रॉप हो गया। तो फिर जो 20 अप्रूव हुए हैं उनके लिए हमें डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। पहले तो abstract estimate बन गया था बेस्ड ऑन द रफ स्केचेस और रफ कास्ट, उसके बाद में फिर डिटेल एस्टिमेट बनेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन दी प्लान्स एंड ड्राइंग्स। ये क्या है, ये कीवर्ड है इसमें। द डिटेल एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द प्लान्स एंड ड्राइंग्स फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द टेक्निकल सैंक्शन। तकनीकी स्वीकृति के लिए इसको बनाया जाता है, उसमें खाली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है। प्रशासनिक अनुमोदन के लिए abstract estimate बनाते हैं और तकनीकी स्वीकृति के लिए डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। यहाँ पर प्लान्स एंड ड्राइंग्स के बेसिस पे बनाते हैं। वहां पर खाली रफ स्केचेस प्लान्स बनाए हैं, खाली ओनली प्रशासनिक अनुमोदन के लिए बनाते हैं। यहाँ पर टेक्निकल स्वीकृति यानी टेक्निकल सैंक्शन के लिए बनाते हैं। सो ये रहे ये abstract estimate। हम इसको डिटेल में जाते हैं, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या चीज है, आपने एक वर्क प्रपोज किया था abstract estimate में, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, उसमें आपने एक प्रपोजल किया था 10 करोड़ का, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि आपको दूसरा भी एडिशन से ऐड करना है, 2 करोड़ का एक एस्टिमेट बनना है, 2 नहीं 3 करोड़ का एस्टिमेट बनना है और भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वो 3 करोड़ के लिए फिर हम उसको
उसको होल्ड करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट को, डिटेल एस्टिमेट बनता नहीं है वहां पर, वो 3 करोड़ के लिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बना के बोर्ड को भेजते हैं। बोर्ड अगर अप्रूव करता है तो फिर उसके साथ हम डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट is prepared for the purpose of including a facility work which ought to have been included. ओरिजिनल स्कीम में इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं किसी कारणवश, तो उसके लिए हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाते हैं। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट ये डिटेल एस्टिमेट से पहले बनता है। जब सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनता है बोर्ड से, उसके बाद में फिर उसका डिटेल एस्टिमेट बनता है, उसके बाद में फिर एग्जीक्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके डिटेल एस्टिमेट बन गया, डिटेल एस्टिमेट बन गया, टेक्निकल सैंक्शन हो गया, टेंडर्स बुलाए, एग्जीक्यूशन हो रहा है। फिर उसके बाद में आता है रिवाइज एस्टिमेट, यानी मतलब जो ओरिजिनल एस्टिमेट था, जो ओरिजिनल प्राक्कलन था, उसमें बहुत सारा वेरिएशन हो गया है, बहुत सारा एक्सेस हो गया। वो बोर्ड ने एक लिमिट दिया है जनरल मैनेजर को, भाई आप 10% एक्सेस कर सकते हैं ड्यू टू स्कोप। मतलब अगर काम यानी स्कोप चेंज करना है तो आपके पावर से 10%। एस्केलेशन कास्ट तो आपको फुल पावर से है, लेकिन जब स्कोप बढ़ता है तो आप 10% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई सा भी एस्टिमेट अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन में वेरी होता है तो उसको रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं, बनाने के बाद देखते हैं, जब फाइनेंस वेटिंग होती है, वेटिंग में फिर क्या पॉइंट्स हैं हम देखेंगे बाद में। उसके बाद में उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जीएम भी कर सकते हैं, बोर्ड भी कर सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द कास्ट एंड दे डिपेंडिंग ऑन द excess due to escalation and other escalation। ये हो गया रिवाइज एस्टिमेट। उसमें आपका ये 4 एस्टिमेट जो हैं, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स, रिवाइज एस्टिमेट्स, ये हैं ओपन लाइन वर्क्स के लिए। यू नो व्हाट इज ओपन लाइन वर्क्स एंड व्हाट इज कंस्ट्रक्शन वर्क्स? कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो हैं न्यू लाइन, डबलिंग, गेज कन्वर्शन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, ये सभी कंस्ट्रक्शन में आते हैं। मोर देन 150 करोड़, 150 करोड़ के ऊपर जो भी जनरली वर्क्स होते हैं वो सभी कंस्ट्रक्शन वाले करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री रिवाइज एस्टिमेट, ये ओपन लाइन एस्टिमेट्स हैं। ठीक है, हम इसको प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, कंस्ट्रक्शन और ये कंप्लीशन एस्टिमेट्स को हम बाद में देखते हैं। पहले ओपन लाइन से चलेंगे, फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डिटेल में आते हैं। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट? इट इज रफ एस्टिमेट। आप ये लिख सकते हैं आंसर में, आपका आंसर में ये लिख सकते हैं कि इट्स अ रफ एस्टिमेट विथ स्केचेस, रफ प्लान्स प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। प्रशासनिक अनुमोदन के लिए एक रफ एस्टिमेट है, रफ स्केचेस द्वारा और रफ कास्ट बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं? प्रशासनिक अनुमोदन के लिए बनाते हैं। ठीक है, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट अगर अप्रूव होता है तो क्या होता है, बजट में इंक्लूड हो जाता है। अगर मोर देन 2.5 करोड़ हैं तो बजट में इंक्लूड होता है एज ए पिंक बुक आइटम। अगर लेस देन 2.5 करोड़ हैं तो उसको जीएम लेवल पे अप्रूव करते हैं और उसमें अम्ब्रेला में आपका लमसम में ओटी में अप्रूव होता है जीएम के द्वारा। ठीक है, तो इसमें पीडब्ल्यूपी प्रीलिमिनरी वर्क्स प्रोग्राम हमने देखा परसों के प्रीलिमिनरी वर्क्स प्रोग्राम जो प्रपोजल्स अभी प्रीलिमिनरी स्टेज में हैं, अभी कहीं अप्रूव नहीं हुए, प्रोसेस ही हो रहे हैं, उसको प्रीलिमिनरी वर्क्स प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोसेस होने के बाद जो शॉर्टलिस्ट होते हैं वो एफडब्ल्यूपी फाइनल वर्क्स प्रोग्राम, और जो फाइनल वर्क्स प्रोग्राम जो अप्रूव हो जाते हैं, जो बजट में इंक्लूड होते हैं, वो पिंक बुक में आते हैं। पिंक बुक में जो आते हैं उसको बोलते हैं आइटमाइज्ड वर्क्स। आइटमाइज्ड वर्क्स इज नथिंग बट, आप याद रखना, क्योंकि हर बार हम अपने ऑफिस के कार्य जो ऑफिशियल वर्क में हम यही आइटमाइज्ड वर्क्स बोलते हैं, नहीं तो लमसम वर्क्स बोलते हैं, कहीं अम्ब्रेला वर्क्स बोलते हैं, कहीं ओटी वर्क्स बोलते हैं। सो व्हाट इज एन आइटमाइज्ड वर्क? Itemized work is a work costing more than 2.5 crores included in the pink book and approved by the parliament. More than 2.5 crores. इसका वो है, इसका जो क्लू है, जो कीवर्ड है वो है more than 2.5 crores, costing more than 2.5 crores included in the pink book as an item. That is called pink book item. मैं थोड़ा 3A पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ। थोड़े लोग को मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी पढ़े हैं तो उनके लिए कुछ दिक्कत हो सकती है कि भाई सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं। मुझे ये 280 जो भी लोग हैं दिख रहे हैं कि ये लोग फ्रेश रिक्रूट्स हैं, असिस्टेंट्स, अकाउंट्स असिस्टेंट्स हैं, जिनको फाइनेंस में काम करने का मौका नहीं मिला है। इसलिए
उनको ध्यान में रख के मैं जा रहा हूँ। सो अगर कोई ऑलरेडी यानी एडवांस स्टेज में है तो आप सुन लीजिए खाली। मेरा तो ध्यान केवल उन लोगों पे है जो अकाउंट्स असिस्टेंट्स हैं और जो फाइनेंस में काम नहीं कर चुके हैं अब तक, उनको ध्यान में रख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में ये जो पीडब्ल्यूपी है, एफडब्ल्यूपी है, पिंक बुक है, सर्वे एस्टिमेट्स है और लमसम वर्क्स प्रोग्राम है। ये हम कभी कभी ओटी बोलते हैं, कभी लमसम वर्क्स प्रोग्राम बोलते हैं। ये सभी ऑब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स के ही फॉर्म्स है। किसी ने बोला है कि पिंक बुक इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। उसमें पिंक बुक में अप्रूव्ड वर्क्स हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट अप्रूव हो गया है, इंक्लूड हो गया है। व्हाट इज पीडब्ल्यूपी? पीडब्ल्यूपी ये प्रिलिमिनरी स्टेज है। ये वर्क्स जो हैं, जो हम प्रशासनिक अनुमोदन के लिए भेज रहे हैं, वो प्रिलिमिनरी स्टेज में है। वो प्रपोज हो गया है, फाइनेंस वेटिंग हो गया है, लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुआ है। एफडब्ल्यूबी अप्रूव हो गया है, शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। 100 वर्क्स में 20 वर्क शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, वो एफडब्ल्यूबी है। ठीक है, और जो सर्वे एस्टिमेट्स है, ये कौन से हैं? ये प्रोजेक्ट के लिए हम देखते हैं बाद में। जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में सर्वे एस्टिमेट्स, ये भी ऑब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट है। ये सभी चीजें हम प्रशासनिक अनुमोदन के लिए बनाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले के प्रोसेस हैं। ठीक है, ठीक है। हमने देखा फॉर्म्स देखा इससे पहले, ये सभी चीजें, इनको हम ऑब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट बोलते हैं। इसके स्टेजेस क्या है? क्या तो पहले क्या है, जो सर्वे प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स है, मोर देन 150 करोड़। सर्वे प्रोजेक्ट्स के जो मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए जो सर्वेस होते हैं, वो सर्वेस को क्या करते हैं, डिमांड नंबर 2 में इंक्लूड करते हैं। हमने डिमांड नंबर 2 लास्ट टाइम दिखाया था आपको कि एक हमारा जो 16 डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, उसमें डिमांड नंबर 2 है मिसलेनियस डिमांड। अब जब किसी स्टेट गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट आया, सर हमारे पास एक नई लाइन बनाओ यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पिछड़ा वर्ग है, जैसे बैकवर्ड एरिया बट वी हैव लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज देयर, ट्रैफिक प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हैं, तो आप इसको एक लाइन बनाइए। तो जैसा हमें रिक्वेस्ट आता है, इमीडिएटली हम लाइन नहीं बनाते हैं इसको, पहले देखते हैं कि सर्वे करते हैं, सर्वे करते हैं कि इस पे बनेगी नहीं बनेगी तो कितना कास्ट होगा, उस कास्ट पे हमारे को कम से कम 10% आरओआर आता है नहीं आता है, ये सभी चीजें हम देखते हैं। उसको सर्वे रिपोर्ट्स, डिफरेंट सर्वे रिपोर्ट्स हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे, पैट्स, प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग इनकम, ट्रैफिक सर्वे, ये सभी सर्वेस अलग हैं। तो जनरली more than 150 crores, works costing more than 150 crores, and all the projects requires the preparation of the survey report. And these survey reports, ये सर्वे करने के लिए पैसा कहां से आता है? Where do we get money? So by including this work in the demand number 2, डिमांड नंबर 2 में इंक्लूड हो जाता है, और उसमें हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोर्ड पैसे देती है हमें कि भाई आप ओके इसको सर्वे करो, इस लाइन का सर्वे करो, हमारे पास ह्यूज डिमांड है इसका, तो इस लाइन का आप सर्वे कीजिए। तो डिमांड नंबर 2 में इंक्लूड हो जाएगा। आप डिमांड नंबर 2 देखेंगे कभी ब्लू बुक में, तो मैं भी दिखाऊंगा कभी आगे, तो उसमें रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन सो एंड सो, डबलिंग ऑफ न्यू लाइन, ऐसा आपको डिटेल्स मिल जाएंगे आपका अपने अपना रेलवे में। तो ये रहा ये फर्स्ट ऑब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। प्रिलिमिनरी वर्क्स प्रोग्राम हमने देखा है कि मोर देन 20 करोड़ पहले भेजते हैं, उसके बाद में मोर देन 2.5 करोड़ सेकंड स्टेज में भेजते हैं, उसके बाद में जब अप्रूव हो जाता है तो फाइनल वर्क्स प्रोग्राम बन जाता है, तो मोर देन 2.5 करोड़ फिर पिंक बुक में आता है। पिंक बुक में आने के बाद उसको आइटमाइज्ड वर्क्स कहते हैं। आइटमाइज्ड वर्क्स के बाद उसमें एक लमसम ग्रांट दिया जाता है। सपोज आपके पास प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं? बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, आपने याद किया होगा। तो प्लैनेट 5300 लेते हैं। 5300 इज आजकल क्या कस्टमर सर्विसेज है। पहले हम बोलते थे उसको पैसेंजर एमिनिटीज बोलते थे, कस्टमर एमिनिटीज है इसको, दैट इज कॉल्ड कस्टमर एमिनिटीज, इट इज नॉट पैसेंजर। सो ऑल कस्टमर्स हु आर द रेलवे कस्टमर्स नो, वी हैव द पैसेंजर्स द रेलवे कस्टमर, वी हैव जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं वो भी हमारे रेलवे कस्टमर है। तो रेलवे कस्टमर नाउ इट हैज बीन रिक्लासिफाइड, रीनेम्ड। पहले हम पैसेंजर एमिनिटीज बोलते थे, प्लैनेट 5300 को, उसको अभी कस्टमर एमिनिटीज कहा जा रहा है। तो मान लो अभी कस्टमर एमिनिटीज में हमने 100 वर्क्स भेजे थे बोर्ड को अप्रूवल के लिए, लेकिन उसमें से 20 वर्क्स अप्रूव हुए हैं, वो 20 वर्क्स हमें पिंक बुक में आ जाते हैं, आइटमाइज आ जाते हैं। उसके बाद में
उसी प्लैनेट के नीचे क्या देता है, साउथ सेंट्रल रेलवे या नॉर्दर्न रेलवे, एक 10 वर्क्स हैं कास्टिंग मोर देन 2.5 करोड़, उसके नीचे एक लमसम ग्रांट दिया जाता है, एक लमसम 20 करोड़ दिया गया है, तो 50 करोड़ दिया गया है नॉर्दर्न रेलवे को। सो 50 करोड़ में फिर हम क्या करते हैं, लमसम वर्क्स कॉस्टिंग लेस देन 2.5 करोड़, हमने हम जो बोर्ड की बात करते हैं तो मोर देन 2.5 करोड़, जब जोनल रेलवे की बात करते हैं तो इट इज लेस देन 2.5 करोड़। तो लमसम वर्क्स जीएम अप्रूव कर सकते हैं 2.5 करोड़ के नीचे, ठीक है। सो ये मोर देन 2.5 करोड़ बोर्ड अप्रूवल रिक्वायर्ड एंड इट इज कॉल्ड आइटमाइज्ड वर्क्स, लेस देन 2.5 करोड़ लमसम वर्क्स। तो इस पे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में। आइटम वाइज वर्क इज कॉल्ड, नीचे लिखते हैं 2-3 आइटम, ऑल द वर्क्स कास्टिंग मोर देन 2.5 करोड़, ऑल द वर्क्स कास्टिंग लेस देन 2.5 करोड़, ऐसा आपको कुछ ऑप्शन दिया जाएगा। सो आइटमाइज्ड वर्क्स इज कास्टिंग मोर देन 2.5 करोड़, लमसम वर्क इज कास्टिंग लेस देन 2.5 करोड़। और आपका उसके बाद में देखते हैं फिर ओटी वर्क्स, अम्ब्रेला वर्क्स है। व्हाट इज अम्ब्रेला वर्क, हमने देखा, डिटेल में देखा है, हम भी आज भी देखेंगे अम्ब्रेला वर्क क्या चीज है। अम्ब्रेला वर्क भी पहले क्या था, शुरू में जब बोर्ड ने व्हाट इज अम्ब्रेला वर्क, एक्चुअली ये एक गवर्नमेंट ने, हमारे जो रेलवे बोर्ड ने जनरल मैनेजर को, हम क्या करते थे पहले, बहुत सारे वर्क्स भेजते थे बोर्ड को, यानी कई वर्क्स, एक प्लैनेट में 100 सैकड़ों वर्क्स भेजते थे, 200 वर्क्स भेजते थे। वहां पर जब रेलवे बोर्ड जाता है तो 200 वर्क्स के लिए उनके पास फंड नहीं होता, तो वो क्या करते थे, 200 वर्क्स इंडिविजुअल अप्रूव करने के बजाय वो लोग क्या करते हैं, उसको ग्रुप कर देते हैं कि पैसेंजर यूनिट्स में क्या 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 ग्रुप्स होते हैं। जनरली एफओबी होती है, जनरली कवर और प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेशंस होता है, नहीं तो आपको यानी गुड शेड में कुछ एमिनिटीज होते हैं और सर्कुलेटिंग एरिया होता है, ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं। तो उन कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके इंस्टेड ऑफ गिविंग 100 वर्क्स, वो लोग क्या करते हैं, भाई जनरल मैनेजर साहब आपको हम इतने वर्क्स के इतने ग्रांट नहीं दे सकते हैं, आपको हम दे रहे हैं 200 करोड़, ये कस्टमर एमिनिटीज में 200 करोड़ आपको दे रहे हैं। तो इन 200 करोड़ को आप अपनी तरह 200 करोड़ को आप क्या करो, जो भी काम जो अहम है प्रायोरिटाइज कर लो, उन वर्क्स को प्रायोरिटाइज कर लो और इन 200 करोड़ में अप्रूव करो कास्टिंग लेस देन 2.5 करोड़। पहले तो था 50 करोड़ तक पावर दिए गए थे जनरल मैनेजर को, लेकिन वो 50 करोड़ में थोड़ा गड़बड़ हो रही थी तो उसको 2.5 करोड़ कर दिए हैं। 2.5 करोड़ के अंदर 200 करोड़ का 80% ऑफ द कास्ट, 80% ऑफ द कास्ट को 80%, 200 करोड़ 80% कितना है, 160 करोड़। सो 160 करोड़ के अंदर 2.5 करोड़ ईच वर्क के होते हुए आप कितने भी वर्क्स आप अप्रूव कर सकते हैं विद इन दैट कास्ट, डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी, उसकी जो जरूरत के हिसाब से आप कर लो। इट इज लाइक दिस। अम्ब्रेला वर्क क्या है, अब अपने बेटे की शादी हो रही तो उसमें क्या हम पूरे डिटेल्स बनाएंगे कि भाई इसके लिए बारात के लिए इतना, खाने के लिए इतना, कपड़ों के लिए इतना, पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट बनाते हैं। तो वो क्या करेगा, जो हमारा जो अपने जो बड़े लोग हैं क्या करते हैं, भाई हम इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम आपको एक कम करते हैं, एक 50 लाख रुपए दे देते हैं, आप इसमें आप क्या भी कर लो, जो भी हिसाब से, जो भी नेसेसिटी के हिसाब से आप कर लो। उसी तरह अम्ब्रेला इज ए lump sum grant. It's a grant given to the general manager to approve works in the particular planets depending on the necessity. ठीक है, तो ये सभी हम फिर से देखें, वेरी टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, VWP, FWP, पिंक बुक, लम्प सम वर्क्स प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स, अम्ब्रेला, ये सभी चीजें क्या हैं, these are all the offset estimates. ठीक है, हमने देखा कि offset estimates IRBSM में कल देखा था कैसा प्रोसेस होता है, उसका डिटेल्स आपको दिए थे हमने। तो इसमें ये इस स्टाइल में आपको दिया हूं कि इसके शॉर्टकमिंग्स क्या है। इसके शॉर्टकमिंग जैसा कि मैं आप इससे पहले डिस्कस कर रहा था कि स्केचेस नहीं आते, रफ प्लान्स नहीं आते, बेसिस फॉर द कास्ट नहीं आता, और ये जो लास्ट डेट अगर बोर्ड ने कह रहा है कि आपको 1 अक्टूबर तक भेजना है, तो वो लोग क्या करते हैं 29 अक्टूबर को आपके फाइनेंस में डाल देते हैं, आपको टाइम नहीं रहता है उसको एग्जामिन करने का। और जो कॉस्ट सीलिंग, जो थ्रो फॉरवर्ड है, वो अवेलेबल नहीं होते हैं उसमें, उसका जो उसका एक शॉर्टकट है, वो कास्ट थ्रो फॉरवर्ड वो लेते ही नहीं। तो दिस आर दी शॉर्टकमिंग्स। आपने खाली पूछा व्हाट इज वर्क्स प्रोग्राम,
हाउ वर्क्स आर प्रोसेस्ड एंड व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, ये शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हम व्हाट आर द चेक वी डू। अभी जो आपने देखा है कि व्हाट इज एन अपस्टार्ट एस्टिमेट देखा, अभी हमने पूरे जो भी देखे हैं अपस्टार्ट एस्टिमेट देखे हैं। तो जो पीडब्ल्यूबी स्टेज में जो भी अपस्टार्ट एस्टिमेट आते हैं तो उसका हम क्या देखते हैं, व्हाट इज द वेरिफिकेशन वी डू, व्हाट इज द वेरिफिकेशन वी डू व्हाइल वी रिसीव एन अपस्टार्ट एस्टिमेट। मान लो आपके पास प्रपोजल आ गया, आप फाइनेंस सेक्शन में पोस्टेड है, डिवीजन के फाइनेंस सेक्शन में पोस्टेड है, तो वहां पर आपको एक प्रपोजल आ गया, आपको एग्जामिन करना है, आपको IRPS में एक आईडी दी गई है और आप आईडी खोलें, आईडी करेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो पेज है खुल जाएगा। उसमें एक प्रपोजल रहेगा, एक जस्टिफिकेशन रहेगा, आपको नेम ऑफ वर्क रहेगा, जस्टिफिकेशन रहेगा, कास्ट रहेगा, बेसिस रहेगा, और जो भी उसमें जो PDF डॉक्यूमेंट करके भेजते हैं, जो रफ स्केचेस है, प्लान्स है, ये सभी चीजें उसमें आपको अपलोड करते हैं। सो अब वो सभी देखेंगे, आप देख के उसमें आपका स्क्रूटनी क्या होगा, आपके लिए सेपरेट एक ब्लॉक रहेगा, वहां पर आपको अपने ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ेगा, इंटरनल नोटिंग भी रहेगी, आपने कभी देखा होगा जैसे आप आईपास में करते हैं, जैसा आपके जो डिफरेंट HRMS में आपके लिए सेपरेट एक विंडो रहेगा, वहां आप नोट कर सकते हैं। तो व्हाट आर द चेक्स यू डू, आपने क्या चेक्स देखना है, तो पहले देख देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुआ नहीं है, मतलब किसी ने इसको अप्रूव किया है, बड़ा अफसर है, केवल सीनियर डी खुद भेज रहा है, सीनियर DN खुद भेज रहा है, तो DRM का अप्रूवल लिया है, भेजा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। तो और एक क्या था, विद इन परमिसेबल कास्ट, भाई आपका ग्रांट है इनटू नाम इनटू टू ग्रांट इनटू 2 माइनस थ्रो फॉरवर्ड, आपका जितना भी थ्रो फॉरवर्ड है। व्हाट इज थ्रो फॉरवर्ड? थ्रो फॉरवर्ड क्या चीज है, अभी एक बार वर्क सैंक्शन होता है तो उसका अभी कोई भी वर्क जो कैपिटल सेट जो वर्क अगर सैंक्शन होता है तो उसकी करेंसी होती है 5 साल तक, 5 साल तक उसकी करेंसी होती है। अगर 2 साल में अगर काम नहीं कमेंस हो रहा है तो खत्म हो जाएगा। अगर 2 साल के अंदर अगर कुछ भी कार्रवाई नहीं की, आपने एक अप्रूव हो गया, अपस्टार्ट एस्टिमेट अप्रूव हो गया, 2 साल में कुछ भी कार्रवाई नहीं की, कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, तो वो लैप्स हो जाएगा वो वर्क, और 5 साल तक उसका करेंसी रहेगी। अगर प्रोग्रेस हो रहा है अच्छी तरह से, कुछ एस्टिमेट के प्रॉब्लम से, तो उसको बढ़ सकती है, करेंसी बढ़ सकती है। लेकिन नॉर्मली 2 साल बगैर कुछ काम करेंगे, 2 साल काम शुरू हुआ तो 5 साल, ये 5 साल भी बढ़ सकता है, इट कैन बी इंक्रीज ऑल्सो, ठीक है। तो जो अभी काम शुरू हो गया है, तो मान लो ये साल एक वर्क सैंक्शन हो गया 2 करोड़ का, उसमें 1 करोड़ ग्रांट मिल गया है, तो 1 करोड़, बाकी का जो 1 करोड़ है फिर वो रहेगा थ्रो फॉरवर्ड। मान लो दूसरी वर्क में एक 5 करोड़ का वर्क है, बोर्ड ने सैंक्शन किया है, वो 5 करोड़ में पहले फर्स्ट ईयर में ओनली 50 लाख दिए हैं, तो 4.5 करोड़ थ्रो फॉरवर्ड हो गया। तो इस तरह नॉट ओनली दी एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसमें हम देखते हैं कि भाई इस वर्क के इतने टेंडर्स बने, इतने अग्रीमेंट्स बने, सो व्हाट इज दी टोटल वैल्यू ऑफ द अग्रीमेंट एंड व्हाट इज दी बिल्स पेड सो फार। टोटल वैल्यू ऑफ द, आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 5 करोड़, आपका टोटल टेंडर वैल्यू है 4 करोड़, उसमें से आपने ऑलरेडी दो करोड़ के बिल्स पेमेंट कर दिए, तो 2 करोड़ इज अवर थ्रो फॉरवर्ड। थ्रो फॉरवर्ड इज अमाउंट, जो कमिटमेंट है, जो पेंडिंग लायबिलिटी से थ्रोन फॉरवर्ड, अभी उसको करना है, उसको बकाया पेमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड थ्रो फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये भी देखते हैं हम, थ्रो फॉरवर्ड रहना चाहिए। और जो BG इंटू नाम, सपोज ग्रांट 500 करोड़ है, नाम 2 है, तो 1000 करोड़ माइनस थ्रो फॉरवर्ड 600 करोड़, तो 400 करोड़ ही है, मतलब परमिसेबल कास्ट है, ये हमें इसको देखना है। उसके बाद में वर्क्स विद इन फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी, यानी जो भी अगर प्रपोजल आते हैं तो रेलवे बोर्ड के पॉलिसी के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि अपने अपने फैंसी आइटम्स प्रपोज कर रहे हैं सीनियर DN, उसको हम, इट इज नॉट जस्टिफाइड, इट इज नॉट कवर्ड बाय द बोर्ड गाइडलाइंस, सो वी विल नॉट अग्री टू दैट प्रपोजल। हम बोलेंगे भाई जो आपका प्रपोजल है, दिस इज नॉट कवर्ड बाय एनी पॉलिसी गाइडलाइंस बाय इशूड बाय द रेलवे बोर्ड, हम बोलेंगे उसको रिटर्न कर देंगे। तो वो बोलेगा नहीं सर, दिस इज बेस्ड ऑन द रेलवे बोर्ड लेटर, तो फिर वो एक सबमिट करेगा, तो हम देखेंगे कि whether this estimate is matching to the guidelines issued by the railway board, हम देखेंगे। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि भाई ये प्रपोजल ग्रास इनिशियल रूट से है, मतलब डिवीजन से इनिशिएट हुआ नहीं हुआ। अगर इनिशिएट हुआ है
तो फिर इस फाइनेंस डिवीजन, जो डिविजनल फाइनेंस का कमेंट क्या है, हम वो भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कास्ट बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइसेस। ऐसा नहीं कि वो 5 साल पहले एक एस्टिमेट प्रपोज होता है 2 करोड़ का, वो हर साल ड्रॉप होते जाते थे, उसी को प्रपोज करते हैं हर साल। 5 साल पहले 2 करोड़ का वर्क था, हर बार वही रिपीट करते हैं वो टिल इट इज अप्रूव्ड। हमने बोलते हैं रिपीट द डोज टिल द पेशेंट डाइज। उस तरह होता है कि एक क्वेश्चन बैंक, सॉरी एक वर्क्स बैंक होता है उनके पास कि भाई ये वर्क करना है, तो उसी को लास्ट में उसको निकाल के इसमें डाल देते हैं, उसको अपडेट नहीं करते हैं। जो कास्ट बेस्ड है उसको अपडेट नहीं करते। मतलब मान लो आपके पास एक प्रपोजल आ गया 2 करोड़ का, तो हमने ये देखा है कि ये 6 साल से वही रिपीट हो रहा है, तो हम उसको 2 करोड़ तो हमने मान के नहीं चल सकते, क्योंकि 6-7 साल से तो बहुत एस्केलेशन हो गया उसमें। तो हम मानेंगे भाई आप करंट मार्केट प्राइसेस से इसको फिर से बनाओ, हम रिटर्न करेंगे इसको, और जो लेटेस्ट एक्सेप्ट रेट से उससे बनाओ, हम इसको रिटर्न करेंगे। ये कास्ट बेस्ड ऑन दी करंट मार्केट प्राइसेस। वो किसी बेसिस देता है कि दिस एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन दी अग्रीमेंट पर्टेनिंग टू 2017 का अग्रीमेंट है, और उसको हम बेसिस ले रहे हैं आज के दिन, वो भी गलत है। सो इट हैज टू बी अपडेटेड। अगर 17 का अग्रीमेंट है तो उसमें 10% 15% अगर वो ऐड करके बताता है कि सर ये ये हम एस्केलेशन किया है, तो हम जस्टिफाइड है तो मान लेना उसको। हमारे पास भी क्या करते हैं फाइनेंस वाले कि उसको 2 करोड़ 2-3 साल में 2 करोड़ का था ना, उसी को अप्रूव करते हैं, वो भी गलत है। वी मस्ट अलाउ द एस्केलेशन आल्सो। एस्केलेशन भी हमें अलाउ करना है ताकि वो उसको जस्टिफाई कर सके। ठीक है, तो इसके बाद में एक नागेश वीళ్ళకి మధ్యన we can give opportunity for them to ask questions, no? Yeah, sir, let them raise the hand. अच्छा ठीक है, तो ठीक है भाई, आप लोग अगर आपको कोई डाउट है तो आप यू कैन रेज योर हैंड, वी कैन क्लैरिफाई योर डाउट, बिकॉज उसके बाद में आपको डाउट अगर रह गया तो समझ में नहीं आएगा। Yeah, it is तो better to हो गए हैं put all the queries, and at the end of session it is better, sir. हाँ ठीक है, डन ओके। तो और एक जो भी एक अभी और एक चेक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी। दो चेक्स हैं, ये सभी एग्जाम के 3 एग्जामिनेशन के लिए, 70% के लिए, 30% के लिए, सभी के लिए यही है। बिकॉज जब की देते हैं, आंसर का की देते हैं, तो यही पॉइंट्स होंगे उसके पास। जब एक मान लो एक क्वेश्चन आंसर, एक आंसर दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टिमेट एंड व्हाट आर द चेक्स टू बी डन। सो व्हाट आर द चेक्स टू बी डन, दिस आर द मेन चेक्स टू बी डन। तो यही उसमें पूछा जाता है, यही उसमें की दिया जाता है। तो वेदर इट इज 3A LEC, आपको 70% सबका यही होगा। हेलो, मैं अभी क्लास में बात करूँ, 10 मिनट से बात करता हूँ, आई कॉल यू, ठीक है? ये तो और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट चेक जो है, अभी जो मान लो एक 5 करोड़ का एस्टिमेट है, उसने दे दिया कि भाई एक अर्थ वर्क के लिए इतना है और उसमें कंक्रीट वर्क के लिए इतना है। तो उन चीजों को द एग्जीक्यूटिव हैज टू सर्टिफाई। पहले तो ये एसएससी लेवल पे सर्टिफाई होगा कि द क्वांटिटीज फॉर मेजर वैल्यू आइटम्स आर बेस्ड ऑन द रफ स्केचेस एंड प्लान्स एंड कैन बी एग्जीक्यूटेबल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, बोल के एक सर्टिफाई करना पड़ेगा एसएससी को एज वेल एज आपके इंजीनियर को। अगर ये सर्टिफिकेशन अगर हम मांगे तो वो लोग थोड़ा डर के करेंगे कि भाई साइन करना है उसको, तो वो लोग अपडेट करेंगे, वो लोग रफ स्केचेस बनाएंगे। सो दिस इज नॉट बेस्ड ऑन दी कोड बुक गाइडलाइंस, दिस इज बेस्ड ऑन दी रेलवे बोर्ड्स गाइडलाइंस इशूड सेपरेटली। ठीक है जी, ये है, ये मेन चीजें हैं। आपने जो और एक क्या है, अगर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, किसी मेजर एक्टिविटी हो रही है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, वो बोलेगा कि यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफार्मर 2 साल पहले एक ट्रांसफार्मर लगाया गया था 2-3 करोड़ रुपए लगा के, तो उस ट्रांसफार्मर को हटाने की बात करता है आज के दिन। 3 साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ, वो ट्रांसफार्मर हटाने की बात करता है। कहता है कि सर ये ट्रांसफार्मर अब इसके ये हमारा जो मेन कार्य हो रहा है उसके बीच में आ रहा है, तो इसको हटाना है। तो हम ऐसे चीजों को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उसको दूसरी जगह बना लो, वहां उसको रिप्लेस मत करो। उसको रिप्लेस करने से वो 3 करोड़ भी गए आपके, और आपका जो फिर से अब एस्केलेशन बनेगा 500-600, यानी मतलब
जहां पर भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, डिमोलिशन के प्रपोजल्स हमें केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा. वी हैव टू कमेंट, वी हैव टू मेक से द प्रपोजल इन्वॉल्व्स demolition of a recently constructed a portion of the building, or recently constructed a transformer which needs to be dismantled. This can be avoided. So please re-examine. इसको भी भेज देंगे, वापस करें. और थ्रो फॉरवर्ड डिटेल्स है, उसको भी देना है. उसके बाद allocation of expenditure is also very very important. Allocation of expenditure, source of fund and plan. ये जो भी ये जो आपके जो चेकलिस्ट हैं, this is applicable for all. आप स्टैट एस्टिमेट भी करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई होता है डिटेल एस्टिमेट में, उसके बाद में रिवाइज एस्टिमेट में भी थोड़ा मॉडिफाई है, लेकिन बेसिक थिंग यही होते हैं. एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, सोर्स ऑफ फंड, प्लान हेड. हमने ये भी देखना है कि वेदर इट इज विच प्लान हेड, और उसमें सोर्स ऑफ फंडिंग कौन सा होगा. मान लो न्यू लाइन है तो कैपिटल होगा, मान लो यार्ड रिमॉडलिंग है वो कैपिटल होगा, मान लो स्टाफ एमिनिटीज का एक कम्युनिटी हॉल है वो स्टाफ एमिनिटीज में जाएगा, एक पैसेंजर एमिनिटी, एक कवरऑल प्लेटफॉर्म है उसको कस्टमर एमिनिटीज में जाएगा. इस तरह हमें उसको क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कल ने कुछ ऑडिट ऑब्जेक्शन किया तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये हमें द करेक्टनेस ऑफ द एलोकेशन इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट. प्लीज आप लोग सब जानिए कि भाई ये अपना हमारे पास आएगा. अनेक्सर बनता है, अनेक्सर जे बनता है, तो क्यों बनता है? क्योंकि एलोकेशन गलत है, सोर्स ऑफ फंडिंग गलत है, प्लान गलत है, रेवेन्यू का कैपिटल आ गया, कैपिटल का रेवेन्यू आ गया. सो इन चीजों को हमें देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है. हमें ये भी देखना है कि जो एस्टिमेशन है वो रियलिस्टिक एस्टिमेशन है टू मिनिमाइज टाइम एंड कॉस्ट ओवर. कॉस्ट ओवर जनरली क्या होता है, हमारे पास जो एस्टिमेट बनता है 2 करोड़ का, वो खत्म होने पे 4 करोड़ हो जाता है. एस्टिमेट बनता है 50 लाख, तो काम कंप्लीट होने में 2.5 करोड़ हो जाता है. तो ये क्यों होता है? बिकॉज यू हैव नॉट एस्टिमेटेड प्रॉपर्ली, यू हैव नॉट एस्टिमेटेड प्रॉपर्ली, यू हैव नॉट मेड द सिंसियर एफर्ट्स इन मेकिंग द रफ स्केचेस एंड प्लान्स एट द टाइम ऑफ अपस्टार्ट एस्टिमेट. इसलिए वो अपस्टार्ट एस्टिमेट 2 करोड़ का तो बन जाएगा. सो वो करना है. मिनिमम कास्ट विद डिजायर्ड, और ऐसा भी नहीं कि आप कास्ट बहुत बड़ा चढ़ के बताना है, उसका मिनिमम रिक्वायर्ड कास्ट बताना है. और जो अजम्पशंस हैं, जो रेट ऑफ रिटर्न में जो अजम्पशंस लेते हैं आपने, जो बोलते हैं कि भाई इससे 10% होगा, इससे 20% आ जाएगा, तो जो अजम्पशंस हैं वो दैट शुड बी बेस्ड ऑन दी बेसिस, उसका करेक्ट बेसिस होना चाहिए. और जो फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन में 10% आरओआर होना चाहिए. और इन चीजों के लिए जो नीचे के चीजें जो भी है, स्टाफ एमिनिटीज, कस्टमर एमिनिटीज, वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वर्क्स रिक्वायर्ड सेफ्टी, इनके लिए आपको आरओआर की जरूरत नहीं है. ठीक, इनको एग्जामिन करने के बाद हम वर्बैटिम कमेंट्स ऑफ एफएलसीओ देते हैं. आपको डिवीजन में अगर काम कर रहे हैं तो वहां पर फाइनेंस कमेंट्स, जो भी सीनीडीएफएम के कमेंट्स, वर्बैटिम कमेंट्स. अगर हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, अगर हेडक्वार्टर्स से वेरिफिकेशन हो रहा है तो वर्बैटिम कमेंट्स ऑफ एफएलसीओ. अगर डिवीजन में वेटिंग, इनिशियल वेटिंग हो रहा है तो वहां वर्बैटिम कमेंट्स ऑफ सीनीडीएफएम. तो उसमें हम क्या लिखना है? जो प्रपोजल एग्जामिन करने के बाद उसका जो जस्टिफिकेशन दिया है उसको आप अग्री करते हैं नहीं करते हैं, ये देखना है आपको. तो करते हैं तो जो प्रपोजल का जो जस्टिफिकेशन है मैं उससे सहमत हूं, आपको पहला ये लिखना है. उसके बाद में रेट्स रीजनेबल हैं, ये रेट जो भी दिए हैं ये बेस्ड ऑन ये है, मैं इससे मैं सहमत, आई एम अग्रीइंग. So they are vetted, they are agreed. The rates, the cost is agreed. The cost is hello, class लो ना. तो आपको उसमें आपको कास्ट भी करना है. जनरली हम क्या देखते हैं डिविजन्स में प्रपोजल आता है वेटेड नॉट वेटेड बोलते हैं, तो उसमें आपको ये कमेंट्स भी लिखना है कि ये हमने हेडक्वार्टर से डिवीजन से लिखा, भाई आपने जो डिवीजन से जो प्रपोजल भेजते हैं वेटेड लिखते हैं, तो बाकी के चीजें पर भी आपको कमेंट करना जरूरी है, खाली वेटेड अग्रीड ऐसा नहीं है. तो ये जस्टिफिकेशन एक इंस्टेड ऑफ एक वेटेड है, अगर वेटेड विद कमेंट्स लिखिए, आप कमेंट्स लिखिए, वेटेड विद रिमार्क्स, ये रिमार्क्स लिखिए, आपने रिमार्क्स लिखिए. तो आरओआर का जो अजम्पशन है उसको देखना है, आपका जो सीलिंग है उसको देखना है. ये चीजें आपको मेन इसमें कमेंट करना है एफएनसीओ कमेंट में. और उस कमेंट के साथ, एफएनसीओ के कमेंट्स के साथ जीएम को जाएगा, जीएम वो देखेंगे अगर पीएफए के कुछ कमेंट्स हैं तो उसको फिर रिमार्क्स लिखेंगे.
रिमार्क्स लिख के वहां से फिर रेलवे बोर्ड भेजेंगे। तो रेलवे बोर्ड क्या करेगा, वो सभी नहीं देखेगा, वो एफएनसीयू के कमेंट्स क्या है देखेगा। पहले अभी भी जो भी कमेटी होती है बोर्ड में, तो पहले कहते हैं व्हाट आर द वर्बेटिम कमेंट्स ऑफ पीएफए एफएनसीयू, क्या कमेंट्स है, ये कमेंट्स है। तो इस कमेंट्स के बेसिस पे वो अप्रूव करते हैं। हमने लिख सकते हैं कि भाई इनका जो प्रपोजल है बियॉन्ड द परमिसिबल कास्ट, अब इनके पास ग्रांट इतना ही है, इतना सारा प्रपोजल भेज रहे हैं, ये मैंने मतलब इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये चीजों को हम लिखना है हमारे जो प्रपोजल में, इस बेसिस पे बोर्ड अप्रूव करती है। ठीक है, सो दीज आर दी मेन चेक्स टू बी डन एट द टाइम ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स। ठीक है, मैं एक 5 मिनट लूं, अभी आऊं। ओके, थैंक्स। तो जो अम्ब्रेला वर्क्स है उसमें हम क्या चेक करते हैं, हम वो देखेंगे अभी। खैर ये तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अम्ब्रेला। वन इज पर्टेनिंग टू द प्रोजेक्ट्स, न्यू लाइन है, डबलिंग है। तो इसके लिए एक रेलवे बोर्ड ने एक वर्क अप्रूव करती है नॉर्दर्न रेलवे में, जनरली नॉर्दर्न रेलवे में करती है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइंस ऑन इंडियन रेलवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइंस ऑन इंडियन रेलवेज बोल के एक वर्क अप्रूव करती है नॉर्दर्न रेलवे में, और उसके लिए 2 करोड़ रुपए दे देती है। सो दोस 2 crores will be divided among the various railways by the railway board, and बोलती है कि भाई आपके लिए एक 50 लाख दिया गया है, आप अगर अपने रेलवे में कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स टेकअप करना है तो उसके लिए आप डीपीआर बनाओ, ड्राफ्ट प्रोजेक्ट सॉरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। तो सर्वे के जगह डिमांड नंबर 2 में इंक्लूड करने के बजाय उसको डिमांड नंबर 16 में इंक्लूड किया जाता है एज एन अम्ब्रेला अंडर
प्लैनेट 1100 to 1400 और 1500, इसको बोलते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अम्ब्रेला वर्क्स फॉर द प्रोजेक्ट्स। लेकिन ये बहुत नाम के वास्ते है, ये आज तक उसको हुआ नहीं है। डीपीआर, इस बोर्ड ने एक डेलीगेशन दिया है कि भाई आप डीपीआर बना सकते हैं 50 लाख तक, इसको डीपीआर बना के आप भेज सकते हैं इंस्टेड ऑफ सर्वे रिपोर्ट्स, लेकिन ये हो नहीं रहा है। लेकिन ऑन द पेपर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अम्ब्रेला। वन इज अम्ब्रेला पर्टेनिंग टू दी प्रोजेक्ट्स, द सेकंड वन अम्ब्रेला इज पर्टेनिंग टू दी मोर देन वन रेलवे। मतलब सदर्न जोन में 3-4 रेलवे है, उनके लिए एक अम्ब्रेला दिया गया, नॉर्दर्न रेलवे में 2-3 रेलवे हैं, उसके उनके लिए एक अम्ब्रेला दिया गया। तो ऐसा भी होता है। सेकंड कैटेगरी इज among more than one railway. First category is pertaining to projects. The second category is more than one railway, and third category is within the railway. Within the railway, एक within the railway एक umbrella दिया गया है। The traffic facility, आजकल तो आप देखेंगे पिंक बुक तो simply umbrella ही हो रहा है। There are no individual works approved in the pink book. If you see any plan head, new work अगर है तो umbrella work ही है, वो कहेगा प्लैनेट 16 के अंतर्गत बोलेगा तो दी वर्क्स अंडर ट्रैफिक फैसिलिटीज, वर्क्स अंडर पैसेंजर एमिनिटीज, वर्क्स अंडर ब्रिजेस, वर्क्स अंडर इलेक्ट्रिकल वर्क्स, टीआरडी वर्क्स, इस तरह अम्ब्रेला दिया जा रहा है। सो विद इन दैट अम्ब्रेला कास्ट, तो जीएम कैन अप्रूव अप टू 80%। यहाँ पर चेक देखना है हमें, तो 80% ऑफ द टोटल कास्ट। मान लो 100 करोड़ दिए गए हैं अम्ब्रेला, ये प्लैनेट ले लेंगे हम, कौन सा ले लेंगे, 3600 प्लैनेट ले लेंगे। 3600 इज इलेक्ट्रिकल वर्क्स, उसमें बोर्ड ने दिया है 100 करोड़। जीएम कैन अप्रूव अप टू 80 करोड़ ओनली, 80 करोड़, मैक्सिमम ऑफ 80 करोड़, क्यूमुलेटिव कास्ट अप टू 80 करोड़, इंडिविजुअल कास्ट इज लेस देन 2.5 करोड़। और रिमेनिंग 20% जो भी कास्ट है वो भी अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड का प्रायर अप्रूवल होना चाहिए। वो किस लिए रखा गया है 20%? क्योंकि आपके जो एस्टिमेट्स है वो बन के फिर वेरिएशन होगा, तो इसीलिए 20% उसका मार्जिन रखा गया। तो शुरू में तो जीएम को 50 करोड़ दिए गए थे अम्ब्रेला में अप्रूव करने के लिए, लेकिन उसको रिड्यूस कर दिया गया 2.5 करोड़ तक। दिस प्रपोजल हैव बीन विथड्रॉन, ठीक है। और आपका जो प्लैनेट आरओबीज हैं, उसमें भी और 2.5 करोड़ से 1 करोड़ कर दिया गया। The cost has been, the powers of general manager have been reduced to 1 crore. एक क्वेश्चन आ सकता है, what are the powers of general manager to approve umbrella works under planet 30 ROBs? उसमें देगा 2.5, 1 crore, 50 lakhs, 5 crores। हमने फट से बोलेंगे 2.5 crore, it is not correct. The powers have been reduced to 1 crore now. So for the planet 29 and 30, the powers of the general manager have been reduced to 1 crore only. For other planets it is 2.5 crores, ठीक है। तो जीएम जब पूरा जो वर्क सैंक्शन होगा तो एक सैंक्शन वर्क का लिस्ट बनाएगा जनरल मैनेजर, एक सीपीडी होगा जो नोडल ऑफिसर होगा, वो बनाएगा, बना के फिर बोर्ड को भेजेगा। उसका प्रोग्रेस भी भेजना पड़ेगा बोर्ड को, ताकि बोर्ड उसको फिर नेक्स्ट ईयर आप उसका ग्रांट दे सके। सो जो भी वर्क्स जो सैंक्शन वर्क्स अंडर अम्ब्रेला होते हैं, इसको एक लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स में इंक्लूड करते हैं। इसको बोलते हैं these works have to be included under law. Law is list of approved works. All the works, umbrella works sanctioned by GM within 2.5 crores will be included in a booklet called the list of approved works for the purpose of monitoring the progress and allotment of the funds. इसको फिर लमसम वर्क्स नहीं बोलते हैं, इसको अम्ब्रेला वर्क्स बोलते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स। मान लो आपको कभी क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलएसडब्ल्यूपी एंड एलएडब्ल्यू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलएसडब्ल्यूपी? लमसम वर्क्स प्रोग्राम क्या है? लमसम क्या है? वर्क्स अप टू 2.5 करोड़। फिर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड्स क्या है? ये भी लेस देन 2.5 करोड़ ही है, लेकिन दीज वर्क्स आर अप्रूव्ड सेपरेटली। इट इज नॉट अंडर द लमसम ग्रांट, इट इज अप्रूव्ड अंडर द अम्ब्रेला। तो और भी लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स में कौन से वर्क्स आते हैं? मान लो न्यू स्टाफ इम्यूनिटी वर्क है, न्यू स्टाफ इम्यूनिटी वर्क, वो जीएम को पावर से अप टू 1 करोड़, वो 2.5 करोड़ का नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं, फिर 1 करोड़ टू 2.5 करोड़ क्या करते हैं, वो हम बोर्ड को भेजते हैं, बोर्ड अप्रूव करता है, फिर अप्रूव करने के बाद उसको लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स में इंक्लूड करते हैं। उसी तरह
आपका जो एमएनपी है, एमएनपी के लिए जीएम का पावर 50 लाख, फिर मोर देन 50 लाख करते हैं, मोर देन 50 टू 2.5 करोड़ वो बोर्ड को जाता है, बोर्ड अप्रूव करता है, तो फिर वापस हमारे पास आता है तो हम इसको लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एमएनपी बोलते हैं, LAW बोलते हैं, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एमएनपी या लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स जो भी, ठीक है। सो द अम्ब्रेला वर्क रिमेन इन द पिंक बुक टिल ऑल द वर्क्स आर एग्जीक्यूटेड एंड एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पर चेकिंग हम क्या करना है, यहाँ पर मेन चेक क्या करना है, वी मस्ट सी 2.5 करोड़ तक प्रपोजल आता है, उनको पावर से जनरल मैनेजर को टू अप्रूव कर 2.5 करोड़, और 2.49 करोड़ पे भेजता है कॉस्ट। 2.49 करोड़ अगर आता है तो आप मत वेट करिए, उसको वही रिटर्न कर दिए, क्योंकि जब आप 2.5 करोड़ को, सॉरी 2.49 करोड़ का अप्रूव करते हैं, तो वो जब डिटेल एस्टिमेट बनता है और जब टेंडर बुलाते हैं तो नेचुरली उसका जो कास्ट है इट गोस बियॉन्ड 2.5 करोड़। जब 2.5 करोड़ के ऊपर जाता है तो फिर क्या होगा, it is beyond the powers of the general manager. If the cost exceeds 2.5 crores, then it will be beyond the powers of the general manager. Then we may have to send it to the board. So to avoid that situation in future, आप उसको बोलिए कि भाई आप इसको रियलिस्टिक एस्टिमेट बना लो, आपको थोड़ा स्कोप जो है कम कर लो, यू ट्राई टू कीप इट विद इन 2 crores। ये अगर बोलते नहीं है लेकिन हम सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2.49 करोड़ अप्रूव करते हैं, अग्री करते हैं, तो मतलब आप गलती करते हैं, क्योंकि द 2.49 करोड़ विल बिकम 5 करोड़ एंड देन सॉरी 2.5 करोड़ के ऊपर 2.5 के ऊपर जाएगा तो फिर बोर्ड जाएगा। आप इमीडिएटली क्या करते हैं, मान लो एक एग्जांपल 2.4 करोड़ का आप एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट अप्रूव कर दिया अम्ब्रेला, उसका डिटेल एस्टिमेट बन जाएगा, वो भी उसी में रखेगा 2.4। आप टेंडर बुलाएंगे, टेंडर में मान लो उसी रेट पे हो गया 2.4 करोड़ से ही हो गया, मान लो कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, लेकिन जब एग्जीक्यूशन होता है तो आप एग्जीक्यूटिव क्या करता है 25% तक तो आपके पास नहीं आता फाइनेंस के पास। सो 2.4 इंटू 25% कितना हो गया आपको 50 lakhs। So it goes to 2.9 crores. That means it is exceeding 2.5 crores. That time it has to go to railway board. So अगर आपको मान लो कंपेल करते हैं, आपके ऑफिसर्स को कंपेल करते हैं कि भाई इसको वेट कर दो, आप एक ऑब्जेक्शन, एक ऑब्जर्वेशन लिखो। सो द कास्ट इज प्रपोज्ड एट द मैक्सिमम अमाउंट applicable for umbrella works which can be sanctioned by general manager up to 2.5 crores. So this estimate bound to exceed 2.5 crores. In that case, this requires the sanction of railway board। एक आप लिख दीजिए इसमें, बोलिए कि भाई आप 2.49 करोड़ प्रपोज कर रहे हैं, इसके चांसेस 100% से ज्यादा हैं कि 2.5 करोड़ हो। जब 2.5 करोड़ से ज्यादा होता है तो फिर बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, तो इस ऑब्जर्वेशन को आप इसमें लिखिए, ठीक है। दैट वाज द अम्ब्रेला। तो ये लमसम भी यही है, लमसम का हिसाब भी यही है। लमसम के क्या, जीएम कैन अप्रूव अप टू 2.5 करोड़ ईच फॉर ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट 1700 एंड 5200। अभी 5200 नहीं है, वो 51 में मर्ज हो गया है, 51 में मर्ज हो गया है स्टाफ वेलफेयर वर्क्स में। सो ये स्टाफ वेलफेयर वर्क्स का जो है न्यू वर्क अगर है तो जीएम कैन अप्रूव अप टू 1 करोड़। तो यहाँ पर भी हम उस को ध्यान में रखेंगे कि अगर 2.49 करोड़ अगर अप्रूव करते हैं तो हम उसको रिटर्न करेंगे, बोलेंगे सर तो इससे क्या होगा, ये बियॉन्ड 2.5 करोड़ हो जाएगा, फिर बोर्ड का अप्रूवल हो जाएगा। सो वी विल रेस्ट्रिक्ट इट अराउंड 2 करोड़। ये ऐसा करने से क्या होता है लोगों के, अदरवाइज आप इफ यू आर अग्रीइंग 2.49 करोड़ दैट यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक, इट इज गोइंग टू बियॉन्ड 2.5 करोड़ एंड इट रिक्वायर्स द सैंक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो अगर आप फाइनेंस सेक्शन में हैं तो आप एग्जाम में तो लिख सकते हैं, तो वी शुड एंश्योर, हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, इट शुड एंश्योर बाय द एग्जीक्यूटिव दैट द कास्ट डज नॉट एक्सीड 2.5 करोड़। इन दैट केस दिस रिक्वायर्स सैंक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड। एंड हम ये भी बोलेंगे कि वी शुड एंश्योर दैट the executive proposes the cost not at the neck, it should be reasonably around 2 crores। लिख सकते हैं, जरा practical things, ठीक है। तो ये परमिसिबल कास्ट है एज पर दी लमसम वर्क है। तो आपको मान लो लमसम ग्रांट आ गया आपका रेलवे के लिए एक प्लानेट में, प्लानेट 5300 में, प्लानेट में आपको आ गया एक 10 करोड़ का लमसम ग्रांट आ गया। वो लमसम ग्रांट में आप 10 करोड़ किसी एक डिवीजन को दिया गया, मान लो 50 करोड़ आया, उसमें 10 करोड़ एक किसी डिवीजन को दिया गया। सो 10 into 2 is 20,
सो 20 crores में कितने वर्क्स करेंगे लमसम वर्क्स? बहुत से बहुत 8 वर्क्स करेंगे, इससे ज्यादा तो होते नहीं। तो they cannot approve more than 8 works. Suppose if they are sending some 15 works, 20 works, you cannot approve it. So we have to see that the cost of the lump sum works within the permissible limits, within the permissible limits. This is very very important. अगर आप ये इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो आपके लम्प सम वर्क्स कम हो जाएंगे। किसी किसी डिवीजन में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्केलेटन होता है लम्प सम वर्क्स का। वो क्यों होता है? आप कभी भी आप परमिसिबल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किए। ये परमिसिबल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपके IRPSA में नहीं है आज के दिन। आज के दिन IRPSA में इस कॉन्सेप्ट को, ये थ्रो फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। इससे भी आपको ज्यादा हो रहा है। तो अगर आपके पास प्रपोजल आता है लमसम तो आप लिखिए उसमें कि एज पर दी MSOP ये परमिसिबल कॉस्ट इज इक्वल टू लमसम ग्रांट इनटू नॉर्म माइनस थ्रो फॉरवर्ड, whereas the IRPSM is not taking the throw forward, leaving a wait for approval of more works. ये लिखिए आप। So you must ensure that the permissible cost, the cost of the total works is within the permissible cost. ठीक है। तो हमने देखा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट है, ये लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट का, उसके बाद में डिटेल एस्टिमेट जाएंगे। जो हमने देखा है कि आइटमाइज्ड वर्क्स के लिए बोर्ड ग्रांट देता है डायरेक्टली, अम्ब्रेला वर्क के लिए भी। क्या पूछ रहे हैं? ठीक है। तो आइटमाइज्ड वर्क्स के लिए डायरेक्टली पिंक बुक में आ जाता है आउटले। अम्ब्रेला वर्क्स के लिए आउटले पिंक बुक में देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट डिविजन्स को, लेस देन 2.5 crores, उसके लिए भी ग्रांट आता है। अम्ब्रेला के लिए भी ग्रांट आता है, अम्ब्रेला के लिए भी ग्रांट देते हैं। लेकिन OOT वर्क्स क्या है? व्हाट इज एन OOT वर्क? OOT वर्क क्या? अर्जेंट है, आउट ऑफ टर्न वर्क। मतलब आज के दिन हम फिर वर्क्स प्रोग्राम प्रोसेस करने में, अम्ब्रेला प्रोसेस करने में, लमसम प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। ये वर्क अर्जेंट है विच कैन नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मान लो अभी अक्टूबर के बाद आपका PWP हो गया, आपके लमसम वर्क्स हो गए, अम्ब्रेला वर्क्स हो गए, लेकिन ये वर्क बहुत ही अर्जेंट है विच वी कैनॉट वेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो दोज वर्क्स which are very urgently required and which cannot wait for the next financial year have to be processed on OOT basis, out of turn basis. इसके लिए पावर्स कितने हैं? अगेन 2.5 crores। फिर प्लान 51 में फिर वही 1 crore। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि GM has powers to sanction out of turn work in respect of passenger amenities up to, एक देगा 2.5 50 crores, वो देगा 1 crore। तो इसका मतलब इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? 2.5 crores। So OOT works also GM same powers of as of umbrella works, same powers as of the lump sum works। OOT भी same powers है, लेकिन इसमें इनको फुल पावर्स है। अगर सेफ्टी वर्क्स है तो GM को फुल पावर्स है, कितने भी वर्क्स अप्रूव कर सकते हैं। मान लो अब अगर एक 5300 प्लैनेट में आपका ग्रांट, रेलवे का ग्रांट ही आपको 50 crore है, आज 100 crore है। OOT वर्क्स कितने भी सैंक्शन करते हैं, मतलब क्या है? आप 200 करोड़ 300 करोड़ भी कर सकते हैं। ये गलत है, ये धारणा गलत है। इसमें क्या दिया गया कंडीशन कि भाई GM को फुल पावर्स हैं सेफ्टी वर्क के लिए, नॉन सेफ्टी वर्क के लिए 25 करोड़ हैं, लेकिन जो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस OOT वर्क्स शुड बी मेट फ्रॉम दी ऑनगोइंग आइटमाइज्ड वर्क्स बाय वे ऑफ रीअप्रोप्रिएशन। रीअप्रोप्रिएशन के द्वारा उस जो आपके जो एग्जिस्टिंग वर्क्स हैं उसमें से थोड़े थोड़े अमाउंट निकाल के इसको बताना पड़ेगा। दी एग्जीक्यूटिव शुड प्रपोज टू फाइनेंस सेइंग दैट सर मुझे एक अर्जेंट वर्क करना है, इसका कास्ट 2 करोड़ है, इसके 2 करोड़ में कम से कम 1 करोड़ एक साल लगता है, इस 1 करोड़ में इन वर्क्स में से थोड़ा थोड़ा निकालूंगा। मेरे पास एक 5 करोड़ का वर्क है, एक 6 करोड़ का है, उसमें से 25 लाख निकाल के मैं इस वर्क को एग्जीक्यूट करूंगा। दे शुड प्रपोज, द एग्जीक्यूटिव शुड प्रपोज। हम उसको देखेंगे कि भाई वो प्रपोज कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो कुछ प्रपोज नहीं कर रहा है कि द फंड्स विल बी रीअप्रोप्रिएटेड बोल रहे हम नहीं वेट करेंगे। प्लीज नोट ऑल फाइनेंस पीपल एंड आल्सो द एग्जामिनेशन पीपल, प्लीज नोट दैट the OOT works will not be approved unless the executive proposes the funds from which they are going to reappropriate. This is very important.
अगर आप पूछना शुरू करेंगे तो वहां से प्रपोजल्स नहीं है। पहले तो क्या जीएम हैज फुल पावर्स, मतलब इतने प्रपोजल्स आते थे, तो उसके बाद में एक उसमें एक कंडीशन लगाया गया कि भाई ठीक है आपको पावर्स हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है उसको प्रपोज करना पड़ेगा वो कहाँ से रीअप्रोप्रिएट करना चाह रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ ओटी कॉस्ट के लिए। जब से हमने वो पूछना शुरू किया, ओटी कॉस्ट बंद हो गए हैं। उसी तरह आपको भी एग्जाम में भी लिखना है कि भाई इसको ओटी वर्क्स मान लो पावर्स है जीएम को, लेकिन उसको प्रपोज करना है बाय वे ऑफ रीअप्रोप्रिएशन। ये देखो रेड में लिख दिया, प्रपोजल शैल बी mooted duly identifying funds for reappropriation with the same plan, then he is entitled to approve work। ठीक है, तो ये रहे ओटी। So based on justification of available funds position, the opposite comment value board takes a decision approved by competent authority works, ये वर्क्स छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद में उसको सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद में फिर अप्रूव कर देगा। तो जो प्रपोजल्स बोर्ड को गए हैं अप्रूव होंगे, पिंक बुक में आएंगे। जो प्रपोजल्स लमसम में है डीआरएम जीएम करेंगे, जो प्रपोजल्स अम्ब्रेला में है जीएम करेंगे, जो प्रपोजल्स ओटी है जीएम करेंगे। ओटी एंड अम्ब्रेला ओनली जीएम कैन सैंक्शन, लमसम कैन बी सैंक्शन बाय DRM also. Lump sum can sanction by DRM. Then umbrella and OT have to be sanctioned by the general manager. ठीक है, तो एक अप्रूव हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज क्या है? ये एस्टिमेट्स में फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया, अपस्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स का अभी तक 2 क्लासेस ऑलमोस्ट हो गए हैं। सो ओनली अपस्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स हमने देखा है। तो अब देखते हैं डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट हमने देखा है कि अपस्ट्रैक्ट एस्टिमेट was done based on the rough sketches and plans. रफ स्केच बन गया, रफ एस्टिमेट बन गया, सम जस्टिफिकेशन बना दिए, वो अप्रूव हो गया, प्रशासनिक अनुमोदन हो गया। उसके बाद डिटेल एस्टिमेट बनेगा बेस्ड ऑन द डिटेल प्लान्स एंड ड्राइंग्स। प्लान्स एंड ड्राइंग्स बनाएंगे एग्जीक्यूटिव, वो प्लान्स एंड ड्राइंग्स के बेसिस पे क्वांटिटीज बनेंगे, और जो लेटेस्ट मार्केट रेट्स हैं उसके हिसाब से रेट बनेगा, और जो क्वांटिटीज और रेट बन के आपका एस्टिमेट तैयार होगा, आइटमाइज्ड रेट्स बनेंगे, एस्टिमेट तैयार होगा। सो द एब्स्ट्रैक्ट पहले हम क्या देखेंगे कि भाई आप डिटेल एस्टिमेट आ गया, क्या चेक करेंगे पहले कि वेदर एनी एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट हैज बीन अप्रूव्ड और नॉट। अगर अप्रूव हुआ तो किस में हुआ है? पिंक बुक में हुआ है, लमसम में हुआ है, आपका अम्ब्रेला में हुआ है, किस उसका डिटेल्स पूछेंगे। उसके बाद पूछेंगे जस्टिफिकेशन, पूछेंगे हम भाई मैंने तो जस्टिफिकेशन दिया था एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में, अब क्या जस्टिफिकेशन है? नहीं, अभी भी पूछेंगे जस्टिफिकेशन, क्योंकि जब जो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट के बीच में बहुत सारा गैप होता है, 10 महीने का, 15 महीने का, तो ये 15 महीने में 10 महीने में ऐसा ना हो कि उसका जस्टिफिकेशन ही नहीं है, उसका खत्म हो गया है, उसकी जो नेसेसिटी है खत्म हो गई, तो हम इसलिए जस्टिफिकेशन भी पूछेंगे डिटेल एस्टिमेट में, जस्टिफिकेशन भी देखेंगे डिटेल एस्टिमेट में, प्लीज नोट दैट। उसके बाद में क्वांटिटी शुड बी बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड ड्राइंग्स एंड प्लान्स, द रेट्स शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिवेलेंट मार्केट रेट्स, एंड उसके बाद में एक्यूरेसी देखेंगे, रीजनेबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट देखेंगे, करेक्टनेस ऑफ द एलोकेशन देखेंगे, और सब वर्क्स जो भी एस्टिमेट बनता है उसके सब वर्क्स बनेंगे, क्योंकि जो कल आपको टेंडर बुलाना है, जिस तरह आप टेंडर बुलाएंगे उस तरह आपके सब वर्क्स होना चाहिए। और जो एविडेंस ऑफ जो आपके एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में एक प्रपोजल है, उसको डिटेल एस्टिमेट में ऑल टुगेदर उसका स्कोप बदल गया, इसको भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जीएम को फुल पावर्स हैं एस्केलेशन को सैंक्शन करने के लिए, जीएम को पावर्स नहीं है स्कोप सैंक्शन करने के लिए, उनको पावर्स है केवल 20% तक, स्कोप को 20% तक कर सकते हैं, एस्केलेशन कितना भी कर सकते हैं जानना है। और इसमें थोड़े सब्सिडियरी चेकलिस्ट है, इसमें पर्टिकुलर शुड बी डन, ये आपको एलोकेशन देखना है, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, ये आप याद कर लीजिए एग्जामिनेशन लिखने का वास्ते। अगर रिन्यूअल्स हैं तो CRRM बनना है, और आपका दूसरे डिपार्टमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको डिपार्टमेंट चार्जेस प्रोवाइड करने हैं, और जो वर्कशॉप में जो आउट ऑन स्टेटमेंट डिस्टिंक्टली शोन करना है, आउट ऑन स्टेटमेंट, और द एस्टिमेट्स स्टाफ पार्टनर्स के लिए आपको रेंट रिटर्निंग स्टेटमेंट होना चाहिए, ये सभी चीजें। और द फैसिलिटीज ओरिजिनली अप्रूव्ड और नॉट इंक्लूडेड अनलेस दे आर एसेंशियल, जो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में जो फैसिलिटीज है वही इसमें इंक्लूड होना चाहिए, नया होना चाहिए। और जो प्लानिंग का वर्क्स रियलिस्टिकली होना चाहिए, टेंडेंसी टू प्रोवाइड एक्स्ट्रावेगेंट एंड लाविश मैनर अवॉइड करना चाहिए, द टेंडेंसी टू लोड एस्टिमेट्स विद ऑफिस इक्विपमेंट्स, फोटोकॉपी से भी, व्हीकल से भी अवॉइड करना चाहिए। आपका जो जनरल चार्जेस प्रोवाइड करते हैं 10%,
उसमें सेविंग्स होना चाहिए, मतलब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेंटेजेस ऑन जनरल चार्जेस। एक 6% होता है, एक 10% होता है, 8% होता है, डिपेंडिंग ऑन दी नेसेसिटी ऑफ द वर्क। तो उसमें मैंडेटरी 10% सेविंग होना चाहिए। और ये भी याद रखना ध्यान में, द जनरल चार्जेस हैव टू बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द नेसेसिटी। ऐसा नहीं कि 10 आपको जनरल चार्जेस को 6% डालना ही है, ऐसा कुछ नहीं। सो द जनरल चार्जेस हैव टू बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द नेसेसिटी। अगर है तो प्रोवाइड किया, नहीं तो मत कीजिए। और द एस्टिमेट इज नॉट अननेसेसरली ओवरबर्डन विद द फैंसी आइटम्स। और आपका जो कंटिजेंसी प्रोविजन है वो मिनिमम होना चाहिए। 3% अलाउड है, 1% दे सकते हैं, 3% दे सकते हैं। और जो लमसम प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं एस्टिमेट में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इसको अवॉइड करना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ दैट। ठीक है, सो दैट इज एट द टाइम ऑफ डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, तो डिटेल एस्टिमेट बन गया, टेक्निकल सैंक्शन हो गया। यहाँ पर पावर्स जनरल मैनेजर का फुल पावर्स है। पहले क्या होता था, 100 करोड़ तक जीएम सैंक्शन करते थे, उसके ऊपर रेलवे बोर्ड जाता था। रेलवे बोर्ड सैंक्शन करने के बाद फिर जीएम को पावर्स लिमिटेड होते थे, आजकल नहीं है। सो एनी अमाउंट ऑफ एस्टिमेट, याद रख लीजिए, एनी अमाउंट ऑफ एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट कैन बी सैंक्शन बाय जनरल मैनेजर। मान लो एक पिंक बुक आइटम सैंक्शन हो गया 1000 करोड़ का, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन, तो डिटेल एस्टिमेट कैन बी सैंक्शन बाय जनरल मैनेजर। वो 1200 करोड़ तक जा सकता है, और स्कोप भी आ सकता है। एस्केलेशन तो फुल पावर्स हैं, स्कोप भी 20% है। मतलब उसकी कितना भी अमाउंट जीएम सैंक्शन कर सकते हैं एक्सेप्ट दी स्कोप बियॉन्ड 20%। तो फिर एग्जीक्यूशन हो रहा है। इसके बाद में फिर जैसा हम देखते हैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है और बिल्स पास हो रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो 500 करोड़ का एस्टिमेट है। हमने देखा है कि फिजिकल प्रोग्रेस खाली 30% ही है, लेकिन फाइनेंशियल प्रोग्रेस 50-60% हो गया। तो मतलब मिसमैच हो रहा है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेस बियॉन्ड 10%। सो हमें उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपका जो एक्सपेंडिचर है वो एस्टिमेट से ज्यादा होने के चांसेस बहुत हैं, तो आप पहले रिवाइज एस्टिमेट सैंक्शन प्रोसेस कर लीजिए। तो उनको बोलेंगे रिवाइज एस्टिमेट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कभी बिल्स आप रोकेंगे तो जब फिर वो स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो रिवाइज एस्टिमेट बनेगा, तो रिवाइज एस्टिमेट जब आएगा तो हम क्या देखेंगे इसमें, हम देखेंगे ऑल द रिलेवेंट पॉइंट्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट। जो डिटेल एस्टिमेट ने जो भी चेक किए थे सब देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि जो रिवाइज एस्टिमेट है वो काम खत्म होने के बाद सबमिट, ऐसा नहीं है, काम जब चल रहा है जब भी उनको बनाना है। और मटेरियल मॉडिफिकेशंस, जो मटेरियल मॉडिफिकेशन जो पावर्स हैं जनरल मैनेजर, हम देखते हैं क्या क्या मटेरियल मॉडिफिकेशन है। नागेश, कैन आई गो अप टू 5 o'clock? As you wish, sir. I can go up to another 20 minutes. But sir, it's up to you, sir. Up to you and participants. ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मटेरियल मॉडिफिकेशन है नहीं एस्टिमेट में, मॉडिफिकेशन तो विद इन दी सैंक्शनिंग पावर्स हैं। हम देखते हैं व्हाट आर द मटेरियल मॉडिफिकेशन, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। रिवाइज एस्टिमेट शैल बी प्रिपेयर्ड वेल इन टाइम wherever it is anticipated that cost is likely to go beyond 10%. Due diligence in tenders where works are taken up without the estimate provision and higher rates, ये भी देखना है। Tenders to be invited only after the land acquisition is completed for new lines, क्योंकि हम देखते हैं कि टेंडर्स बुला देते हैं, फिर लैंड एक्विजिशन होता ही नहीं, टेंडर्स बुला देते हैं, उसमें बहुत सारा एक्सेस हो जाता है। जो रिवाइज एस्टिमेट की जरूरत कब पड़ती है, पहली बात तो क्या है, आपके जो अपसाइड एस्टिमेट्स हैं वो बहुत ही अप्रॉक्सीमेटली है, उसमें जो रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं हुआ है। दूसरा क्या है, आपका वेरिएशन, अबनॉर्मल वेरिएशन होता है एग्रीमेंट्स में। और जो लैंड जो कास्ट होता है वो हम मान के चलते हैं अपने को 50,000 में गज मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली हमें 2-2 लाख देना पड़ता है सिटीज में, उससे भी कास्ट एस्केलेट हो जाएगा। ब्रिजेस आते हैं, हम 4 ब्रिजेस समझते हैं, 10 ब्रिजेस हो जाते हैं। हम समझते हैं सॉइल घट है लेकिन वो लूज सॉइल हो जाएगा। ये सभी चीजों से कास्ट बढ़ता है। हम देखते हैं बाद में कभी व्हाट आर द रीजंस फॉर द वेरिएशंस। तो इन सभी को हम देखते हैं व्हाइल वेरीफाइंग द रिवाइज एस्टिमेट्स। तो ये तो देख लिए। ये मटेरियल मॉडिफिकेशन क्या है, जनरली any substantial modification changing the scope of the work in sanction, any substantial modification। और कौन सैंक्शन कर सकता है मटेरियल मॉडिफिकेशन, जीएम कर सकते हैं अप टू 2.5 करोड़ विद पीएफएस कंकरेंस। बट जो 2.5 करोड़ है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओरिजिनल स्कीम से।
इट हैज टू बी विद इन 20%. अगर मेजर प्रोजेक्ट्स है तो ये 4-5 मेटल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20 crores. और ये जो स्लाइड्स हैं किसको बोलते हैं मेटल मॉडिफिकेशन? एनी चेंज इन द अलाइनमेंट मान लो हम सीधा जाने का थोड़ा कुछ अलाइनमेंट चेंज हो गया, 1-2 किलोमीटर का रास्ता ज्यादा हो गया न्यू लाइन में, तो any increase by 1 kilometer is metal modification. Introduction of a new station or omission of a new station is a metal modification. Any alteration in type of number of engines, vehicles provided in the estimate is a metal modification. A change in the layout yard affecting the general method of working is a metal modification. Any departure from the standards of construction is a metal modification. और मान लो आप फर्स्ट क्लास मटेरियल प्रपोज किए डिटेल एस्टिमेट में, आपको जो एक्चुअली आप सेकंड हैंड मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मेटल मॉडिफिकेशन. कम से कम क्या चीज है? द इंट्रोडक्शन और ओमिशन ऑफ एनी वर्क कास्टिंग 5 lakhs. अगर 5 लाख का एक एडिशनल वर्क है, 5 लाख का एडिशनल वर्क आप ओमिशन कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं तो मेटल मॉडिफिकेशन है. सब वर्क में इंक्रीज बाय 5 lakhs इज अ मेटल मॉडिफिकेशन. एक सब वर्क 5 लाख का सब वर्क है वो मेटल, मतलब क्या है? एनीथिंग एनी एक्सेस, एनी चेंज इन द स्कोप बाय 5 lakhs इज अ मेटल मॉडिफिकेशन. ग्रास रूट जो मेन पॉइंट है, एनीथिंग बियॉन्ड 5 lakhs इज अ मेटल मॉडिफिकेशन. तो फिर anything beyond 5 lakhs is a metal modification, but GM can sanction up to 2.5 crores. Beyond 2.5 crores, it has to go to railway board. ठीक है? हमने एक्सेस ओवर एस्टिमेट देखा है. उसके बाद हमने देखा जो ओपन लाइन एस्टिमेट देखे, हमने अपसाइड एस्टिमेट देखा है, आपने डिटेल एस्टिमेट देखा है, सप्लीमेंट्री देखा है, रिवर्स एस्टिमेट. हम देखते हैं अभी प्रोजेक्ट के अपसाइड एस्टिमेट, सॉरी प्रोजेक्ट के एस्टिमेट्स क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स. अगर आपको आंसर लिखना है तो सभी लिखिए. जब पहले हम जो स्लाइड में दिखाए थे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, आप लिखेंगे अपसाइड एस्टिमेट, आप लिखेंगे डिटेल एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, आप रिवाइज उसके बाद में सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, देन प्रोजेक्ट अपसाइड एस्टिमेट, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, ये सब आप लिखेंगे. मैं आपके लिए आप अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ओपन एंड को अलग कर दिया हूँ, कंस्ट्रक्शन को अलग कर दिया हूँ. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट अपसाइड एस्टिमेट बोलते हैं, वहां पर हम अपसाइड एस्टिमेट बोलेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट अपसाइड एस्टिमेट. आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन अपसाइड एस्टिमेट एंड प्रोजेक्ट अपसाइड एस्टिमेट. जब क्या लिखते हैं हम? अपसाइड एस्टिमेट इज नथिंग बट an upside estimate of the open land organization. Project upside estimate is nothing but a survey estimate pertaining to projects. तो जो भी सर्वेस हैं उसको प्रोजेक्ट अपसाइड एस्टिमेट बोलते हैं. अब कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट क्या है? दिस इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ ऑल द डिटेल एस्टिमेट्स पर्टेनिंग टू द प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही डिटेल एस्टिमेट नहीं बनता है, उसके लिए अलग अलग डिटेल एस्टिमेट बनते हैं, लेकिन सब मिला के इज अ कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द डिटेल एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट. तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट बनता है, उसके बाद में एक्सक्यूशन होता है, उसके बाद में फिर रिवाइज एस्टिमेट भी बनता है. रिवाइज एस्टिमेट 1 एस्टिमेट, 2 एस्टिमेट, 3 एस्टिमेट, 4 एस्टिमेट बनते जाते रहते हैं प्रोजेक्ट के लिए. उसके बाद में कंप्लीशन एस्टिमेट बनता है कंस्ट्रक्शन में. ये मान लो न्यू लाइन प्रोजेक्ट है और 1.5 साल में उसको कंप्लीट होना है, तो जब एक कंप्लीशन एस्टिमेट बनता है, इट्स अ स्टॉक टेकिंग एस्टिमेट. मतलब हम देखते हैं कि हम कहाँ पर है, वेयर डू वी स्टैंड, हमारा जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस, फिजिकल प्रोग्रेस क्या है. तो उस तरह कंप्लीशन एस्टिमेट बनाते हैं, बोर्ड को भेजते हैं, बोर्ड उसके हिसाब से वो सैंक्शन करता है और आपके फंड्स भी देता है. दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन एस्टिमेट. तो कंप्लीशन एस्टिमेट वहां पर नहीं बनते ओपन लाइन में, यहाँ पर बनते हैं कंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये है. ठीक है, तो पूरे एस्टिमेट्स आ गए इसमें. ये आज तक के लिए हम अपसाइड एस्टिमेट यानी पूरा जो IRPSM अपसाइड एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट सभी कंप्लीट किए हैं. इसमें आपके क्वेश्चंस पूछिए प्लीज. Participants, please raise your hand. I will unmute one by one. Devashish, please unmute. सर गुड आफ्टरनून सर. हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए. सर एक्चुअली मटेरियल मॉडिफिकेशन एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट सर दोनों ही टाइप ऑफ एक ही लग रहा है, लेकिन सर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एस्टिमेट एंड मटेरियल मॉडिफिकेशन? या गुड क्वेश्चन.
तो अभी सप्लीमेंट्री आप जिस तरह आप कह रहे थे, एक्चुअली सेम, वन एंड सेम, ऑल द मटेरियल मॉडिफिकेशन आर सेंट टू द बोर्ड. अगर मान लो ओपन एंड वर्क है तो सप्लीमेंट एस्टिमेट अलग बनता है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन में अगर मटेरियल मॉडिफिकेशन होता है तो अमेंडेड ऑफसेट एस्टिमेट बोल के बनाते हैं, एक अमेंडेड ऑफसेट एस्टिमेट बनाते हैं ऑन कंस्ट्रक्शन साइड. अमेंडेड ऑफसेट एस्टिमेट आप ओपन साइड, ओपन लाइन साइड भी बना सकते हैं इसको. सो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या है? ऑल टुगेदर ओमिशन, ऑल टुगेदर एक स्कीम को हमने ओमिट कर दिया है, which ought to have been included in the original scheme, हमने उसको ओमिट कर दिया है. So almost same supplementary estimate can be processed for any material modification also. So material modification can also be included in a supplementary estimate. सर एक्चुअली सर कंस्ट्रक्शन में तो सर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट नहीं होता है, वो तो आप वहाँ पर अमेंडेड ऑफसेट एस्टिमेट बनता है. वहाँ पर यस सर, वहाँ पर हमें अगर कुछ ही मान लो कुछ वेरिएशन आ गया, डिविएशन आ गया, मेटल मॉडिफिकेशन अप टू 2.5 crores into 8 times 20 crores जीएम कर सकते हैं. उसके ऊपर जो भी होता है तो बोर्ड जाता है. लेकिन एक अमेंडेड ऑफसेट एस्टिमेट बोल के कॉन्सेप्ट है, उसी में अपने इंजीनियरिंग कोड में अमेंडेड ऑफसेट एस्टिमेट उसको बना सकते हैं कि मान लो पहले 100 किलोमीटर था लाइन, अभी 120 किलोमीटर हो गया, तो 20 किलोमीटर के लिए एक अमेंडेड ऑफसेट एस्टिमेट बन के बोर्ड को जाएगा, बोर्ड सैंक्शन करेगा, उसके बाद में फिर उसका डिटेल एस्टिमेट बनेगा. सर तब ओपन लाइन में मटेरियल मॉडिफिकेशन होता है ना, नहीं होता ओपन लाइन में? बिल्कुल होता है, मटेरियल मॉडिफिकेशन होता है वहाँ पर. तो 2.5 करोड़, क्योंकि पावर्स जनरल मैनेजर के पावर्स कितने हैं? 2.5 करोड़ हैं. तो होता है एनीथिंग बियॉन्ड 5 करोड़, 5 लाख इज मटेरियल मॉडिफिकेशन. आपने देखा इससे पहले, एनीथिंग बियॉन्ड 5 लाख इज मटेरियल मॉडिफिकेशन. एनी इंक्रीज, एनी ओमिशन, एनी इंक्रीज इन सब वर्क 5 लाख. सो मटेरियल मॉडिफिकेशन होता है, उसमें पावर्स दिए गए हैं, पीएचओडी को पावर्स दिए गए हैं, जीएम को. 5 लाख का अंदर होना चाहिए हो. हाँ, 5 लाख के अंदर अगर है तो मटेरियल मॉडिफिकेशन नहीं होता है उसको. एनीथिंग बियॉन्ड 5 लाख इज मटेरियल मॉडिफिकेशन एंड जीएम कैन सैंक्शन अप टू 2.5 crores. थैंक यू सर. Yeah, next Mr. Mandal, please unmute. गुड इवनिंग सर. हाँ बोलिए, गुड इवनिंग. सर ओपन लाइन में आपने बताया है जो कंप्लीशन एस्टिमेट नहीं होता है, बट ये मोर देन 1 crore तो देन रिक्वायर्ड है, नहीं है? जो आपका जो इंजीनियरिंग कोड में जो 1 करोड़ की बात हो रही है वो गलत है. 1 करोड़ कभी की बदल गया है, मतलब 1 करोड़ अभी नहीं रहा. तो ओपन लाइन में जो अभी जो सैंक्शनिंग पावर जीएम के है 2.5 करोड़ हैं, और जो कंप्लीशन एस्टिमेट बनता है इट इज केवल प्रोजेक्ट्स के लिए बनता है, वर्क्स के लिए नहीं बनता है. केवल प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग मोर देन 150 करोड़, जो कि सर्वे एस्टिमेट्स पे बेस पे, जो न्यू लाइन डबलिंग, गेट कन्वर्शन, आरई, इसको बनता है कंप्लीशन एस्टिमेट. दूसरे पे कंप्लीशन रिपोर्ट बनते हैं, बस केवल ओके, थैंक्स. कंप्लीशन रिपोर्ट बनते हैं. Yeah, next. Okay, thank you, sir. Mitra, please unmute. Mr. Mitra, please unmute. Yeah, next Mr. Vicky, please unmute. Mr. Vicky, please unmute. Hello. Yeah, please speak. What is the difference between conference and wedding? Sir, हाँ बोलिए. sir, What is the difference between conference and wedding? Sir, in which planet, sir, GM's power reduced from 2.5 crores to 1 crore? आपके जो आरओबीज है ना, जीएम, so umbrella, I am talking about umbrella work, not the lump sum works. I am talking about umbrella works. जीएम के पास 2.5 करोड़ से कम करके 1 करोड़ कर दिया गया है. आपका 2900 and 3000 आरओबीज. Okay, sir. उनके नजदीक में है. अरे अनम्यूट नहीं किए सर. हेलो 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 बोलिए. हाँ सर, वेडिंग और कॉन्फ्रेंस का डिफरेंस बोला रहेगा. क्या बोल रहे हैं? वेडिंग और कॉन्फ्रेंस का डिफरेंस. आवाज नहीं है, क्लियर नहीं है. यू आर नॉट क्लियर प्लीज. उसमें कुछ डिफरेंस बिटवीन वेडिंग एंड कॉन्फ्रेंस. नागेश, आर यू एबल टू हियर? Yes, sir. Sir, ఏమంటున్నాడు? sir, better ask them to message in the chat box, sir. It is not. मैसेज कीजिए चैट बॉक्स में.
Yeah, next Vishwanath Chakravarti, please unmute. गुड आफ्टरनून सर। बोलिए। ऐसा है सर, जो अम्ब्रेला वर्क है एंड ओटी वर्क, ये तो जीएम सैंक्शन करते हैं, जी। और ये लमसम वर्क में क्या जीएम का अप्रूवल जरूरी है या डीआरएम पीएचओडी लेवल कर सकते हैं? पावर्स दिए गए हैं आपको, डीआरएम्स को, पीएचओडीज को पावर्स दिए गए हैं। थोड़े प्लैनेट्स आपको 3100 है, जो सेफ्टी प्लैनेट्स हैं वो सभी डीआरएम भी कर सकते हैं, और जो आपके जो एसएनटी प्लैनेट्स हैं जो पीएचओडी रख ली हैं सीएसटी करते हैं, और इलेक्ट्रिकल वर्क्स भी हैं मोर देन कास्टिंग मोर देन 1 करोड़, वो पीएचओडी करते हैं। जीएम के पास बहुत कम ही जाते हैं। ओ सर, जीएम का जो प्लान हेड है वो सैंक्शन करते हैं 5200। 5200 नहीं, 5100। अभी 5200 नहीं रहा, अभी 5100 में 1 करोड़ तक ही न्यू वर्क, बाकी जो इम्प्रूवमेंटल वर्क्स हैं वो 2.5 करोड़ से जा सकते हैं। बट न्यू वर्क अगर है, नया न्यू कम्युनिटी हॉल, न्यू क्लिनिक, न्यू इंस्टीट्यूट, ऐसी चीजों के लिए 1 करोड़ है। टू द एग्जिस्टिंग जो अम्यूनिटीज हैं वो 2.5 करोड़। अच्छा, और एक आज क्वेश्चन था सर, ऐसा है जो प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट है एंड और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट जो है, ये दोनों में एक तो कंस्ट्रक्शन लाइन्स में है और दूसरा जो है हम लोग को जो दूसरा काम है हम लोग को, उसके लिए ये एब्स्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। जी जी, ऐसा है। पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए सर्वे एस्टिमेट बनते हैं। पूरे कंस्ट्रक्शन, मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कौन से अपने पास, न्यू लाइन है, गेट कन्वर्शन है, डबलिंग है, आरईए है, और कभी कभी ट्रैफिक फैसिलिटीज में बहुत बड़ा काम होता है, जो टर्मिनल है, टर्मिनल स्टेशन बनाना है, उसमें 500-100 करोड़ का कुछ एस्टिमेट है। इन एस्टिमेटों के लिए आपको पहले सर्वे करना पड़ता है, सर्वे बनते हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जो नया ट्रेंड क्या है, इंस्टेड ऑफ सर्वे दे आर मेकिंग डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनता है, वो भी ये सर्वे टाइप ही है। मतलब सो प्रोजेक्ट साइड वी आर मेकिंग सर्वे एस्टिमेट्स एंड द डीपीआर, मतलब प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे और द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनते हैं। ये दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कंप्लीटेड दैट। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है बोर्ड का तो पिंक बुक में आ जाएगा डिमांड नंबर 16 में। डिमांड नंबर 16, यस यस। मिस्टर बी कुमार प्लीज। सर नमस्कार सर, एक बार अम्ब्रेला वर्क को फिर से बताएंगे सर? क्या क्या बोले? अम्ब्रेला वर्क को एक बार फिर से बताएंगे सर? अम्ब्रेला वर्क जो है ये, मतलब पहले हम क्या करते थे, इंडिविजुअल वर्क्स भेजते थे। मतलब आपको सपोज फुट ओवर ब्रिज चाहिए, फुट ओवर ब्रिज आपके पास कितने स्टेशन है? 50 स्टेशन है, 50 स्टेशन के अलग 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 50 वर्क्स भेजते थे। फुट ओवर ब्रिज एट ए स्टेशन, फुट ओवर ब्रिज एट ए स्टेशन, फुट ओवर ब्रिज एट बी स्टेशन, ऐसा बोल के भेजते थे बोर्ड को। तो बोर्ड ने क्या एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट किया, भाई मैं इतने इंडिविजुअल वर्क्स मैं नहीं सैंक्शन करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, इतना अमाउंट मेरे पास हाई भी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपने टोटल वैल्यू जो डिफरेंट वर्क्स प्रपोज किए हैं उसका कास्ट आ रहा है 500 करोड़, लेकिन उतना अमाउंट नहीं है, तो मैं आपको एक काम कर रहा हूँ 100 करोड़ दे दे रहा हूँ, आपको 100 करोड़ दे दे रहा हूँ। उस 100 करोड़ में आप जो भी काम है आप कर लो, जो भी काम है विद इन 2.5 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी यू गेट अप्रूव। तो एक आपको अम्ब्रेला दिया है, उस अम्ब्रेला के अंदर आप कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, बारिश से बचते हुए आप जाइए। अम्ब्रेला इज नथिंग बट ये कवर, a cover given to you, cover in the form of grant given to you to approve works. Okay sir, okay, thank you sir. मतलब एक ही वर्क आएगा, इतने वर्क के हिसाब से एक ही वर्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टर मंडल। गुड इवनिंग सर। सर आई एम सेइंग अगेन, सर लेटेस्ट एसओपी अभी कौन सा जो वी शुड फॉलो? एमएसओपी डेट कौन सा लेटेस्ट एसओपी डेट? 2017 इज लेटेस्ट सर? हाँ लेटेस्ट है, 18 का लेटेस्ट है, तो थोड़े करेक्शन स्लिप है सर। एनीथिंग मोर सर? वी हैव सीन दैट फाइनेंशियल वॉल्यूम 2 it is not updated, so why now we should available that? देखो आपके जो फाइनेंशियल कोड ही नहीं है, आपका इंजीनियरिंग कोड भी अपडेट नहीं हुआ। किसी ने पूछ रहा था कि भाई 1 करोड़ कास्टिंग मोर देन 1 करोड़, मेनी मेटल मॉडिफिकेशन इन द वर्क्स कास्टिंग 1 करोड़ का जमाना चला गया। तो उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन होनी है, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, हम उसको साथ साथ जो भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं, साथ साथ जो करेक्शन स्लिप आए हैं उसको भी लेके साथ चलेंगे। अब जब इंजीनियरिंग कोड बढ़ते हैं
तो उसमें आप उसके करेक्शन स्लिप भी देख लीजिए उसको। अब जो मेटेरियल Sir, मॉडिफिकेशन वाला है 5 लाख का, वो बहुत पुराना 82 में जो हमने पढ़े थे, तो 82 का है वो 5 लाख का। वो आज के दिन कम से कम उसको 1 करोड़ तो होना चाहिए, 2 करोड़ तो भी होना चाहिए। वो अभी मॉडिफिकेशन हुआ नहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता जब बोर्ड के पास जाएंगे उनको, अभी आप लोग उनको बोलेंगे भाई एनीथिंग बियॉन्ड 2.5 करोड़ जो रिक्वायर्ड बोर्ड सैंक्शन है, अब एक 10-15 एस्टिमेट, एक 100 एस्टिमेट उनके पास जाएंगे, तो जब वो सोचेंगे कि भाई ये गलत है तो थोड़ा चेंज करना है। sir, we are holding 2008's volume 2. That is sufficient for us, sir. 2000 उसमें करेक्शंस हुए ना बहुत सारे। सर मैनुअली अमेंडमेंट है तो हम बिल्कुल केयर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन सेल के बाद आने के बाद बहुत सारे करेक्शंस इश्यू हुए हैं, तो उसको थोड़ा अपडेट कर लीजिए। Sir, we should carry in exam hall that, sir, amendment copy also. अमेंडेड वाले मिल जाएंगे आपके पास, मेरे ख्याल से अपने वेबसाइट में भी है, अमेंडेड है, अमेंडेड फ्रॉम अप टू डेट बोल के हैं। आप उसको क्या करिए, थोड़ा इसको मैच कर लीजिए, जो पहले बोर्ड गाइडेंस है उसके साथ मैच कर लीजिए। Next, Mr. Yadav, please. सर जी नमस्कार। नमस्ते जी। सर ज्यादातर एस्टीमेट में जो है सर SOR रेट लेके एस्टीमेट बनाते हैं, और जब टेंडर होता है तो उस समय 20% 30% एवं चला जाता है, तो क्या सर ये औचित्य है? LR लोग लगाते ही नहीं सर। हाँ बिल्कुल, मैं आपको डिस्कस कर रहा था ये बात की कि आपके जो लमसम पावर्स हैं, जो अम्ब्रेला पावर्स है, ओडी पावर्स है 2.5 करोड़ तक हैं, और आप मान लो आप फाइनेंस सेक्शन में हैं तो आपके पास एक एस्टिमेट आ जाएगा 2.4 करोड़ का, तो आपने उसको वेट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों? आपके पास बोलेगा भाई तो ये तो उनका तो DRM के पावर्स है 2.5, GM के पावर्स है 2.5, आप 2.4 करने में क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये है, उनको समझाना पड़ेगा कि दिक्कत ये है सर, अगर 2.4 करोड़ अगर मैं वेट करूं, कल वो टेंडर बुलाएगा, टेंडर में एस्केलेशन आ जाएगा, टेंडर के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसको 25% वो ऑपरेट करेगा, एक्सेस ऑपरेट करेगा, वो एक्सेस ऑपरेशन 25% तक आपके पास नहीं आएगा, तो ये कास्ट 2.5 करोड़ के ऊपर जाएगा। 2.5 करोड़ के ऊपर बियॉन्ड GM पावर्स हैं, इरेगुलर है, तो बोर्ड जाएगा। तो कम से कम इस ऑब्जर्वेशन को हमें लिखेंगे, अगर आपके पास अगर एस्टिमेट आता है तो कम से कम इस ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे आप। थैंक यू सर। No more queries, sir. Okay. Sir, that was once again an interesting session on the topic. On behalf of our academy, I thank all the participants. I also thank the speaker of the day, Sri Fazluddin Garu. Thank you one and all to remain. Tomorrow's topic will be on operating ratio. Login timings at 14:45 hours. Session will start at 15 hours. Thank you one and all. Bye bye.